welcome to the Diligent Learners. This is part 2 of the video in which we will be covering Ghatnachakra for Indian polity. So हम लोग बस questions primarily देखेंगे and before starting fundamental rights I will first do the theory of fundamental rights so that we are able to solve the questions easily. ठीक है? So now we will do the questions related to fundamental rights from Ghatnachakra. ठीक है? First question, which one of the following factors constitutes the best safeguard of liberty in a liberal democracy? क्या क्या दिया है? Committed judiciary, centralization of power. मैं बोल रहे हैं बेस्ट सेफगार्ड ऑफ लिबर्टी का बताना है ना. सो देखो, कमिटेड जुडिशरी इज़ अ नेगेटिव टर्म, मतलब कि a judiciary which is biased towards the government, that is known as a committed judiciary. ठीक है, so this will be wrong. Then we have centralization of powers. Again, that is negative. It won't be a good safeguard of liberty in a liberal democracy. ठीक है, फिर है elected government. ठीक है, ये हो सकता है. फिर है separation of powers. So this is the one which is the best safeguard of liberty. Separation of powers between the executive, legislative and judiciary. ठीक है, तो this will ensure कि all of them do their own work properly and कुछ भी intervention नहीं हो रहा है, and it will be the best safeguard for liberty. So the answer will be D. Next, which Congress session passed the resolution of fundamental rights in 1931? So the answer for this is Karachi session. ठीक है, कराची सेशन में पास हुआ था. It was held on March 26 to March 31st, 1931 and was presided by सरदार वल्लभ भाई पटेल. ठीक है, और गांधी अर्विन पैक्ट हुआ था उसके बाद में दिस वॉज हेल्ड. एंड इन द आफ्टरमैथ ऑफ दिस कांग्रेस सेशन भगत सिंह, राजगुरु जी एंड सुखदेव जी वर एग्जीक्यूटेड. ठीक है, in this session Gandhi Irwin Pact was also endorsed, है ना, and the resolutions on fundamental rights and national economic program were also adopted in the Karachi session. So देखा जाए तो it was a very important session of the Indian National Congress. कब हुआ था? After the गांधी अर्विन पैक्ट. तो ये आपको पता होगा, CDM सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के टाइम पे हो रही थी ये सब चीज़ें. ठीक है, सो दिस इज़ क्वाइट इम्पोर्टेंट. एंड सरदार वल्लभ भाई पटेल तो आपको हो जाएंगे याद कि ही वॉज प्रिसाइडिंग दिस कांग्रेस सेशन. एंड कराची को कैसे लर्न करेंगे कि फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडिया. हमें लगेगा कि कोई इंडियन वाले पोर्शन में होगा इसका ये वाला सेशन, बट दिस वॉज हेल्ड एट कराची. सो द सेशन वेयर इन द फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडिया वर फर्स्ट अडॉप्टेड, that was held at Karachi. ठीक है, so it is quite ironical. So वैसे करके आप लर्न कर लो. ठीक है, next है which of the following is correct? The Nehru Report of 1928 had advocated the inclusion of fundamental rights in the Constitution of India. Then Government of India Act of 1935 referred to the fundamental rights. So this is a simple question fairly. The Nehru Report had, this is correct, they had advocated for the inclusion of fundamental rights in the Constitution of India. So this is correct statement. ठीक है, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 referred to fundamental rights, तो ऐसा कुछ नहीं था, है ना. Then August offer included fundamental rights, this is also not true. And Cripps mission referred to fundamental rights. ठीक है, this is also not true. Only the first statement here is true, wherein it has been mentioned that Nehru report was in favor of the inclusion of fundamental rights in the Constitution of India. ठीक है, next है, who said the following words about fundamental rights? A fundamental right should be looked upon not from the point of view of any particular difficulty of the movement, but as something that you want to make permanent in this Constitution. So this is a quote-based question. ठीक है, and this quote was given by Jawaharlal Nehru ji.
ठीक है। सो बस ऐसे पता होना चाहिए कि जवाहरलाल नेहरू जी had said this कि a fundamental right is something which should be incorporated in the constitution and made permanent in the constitution। ठीक है, तो बस परमानेंस की बात करी उन्होंने कि इट शुड बी मेड परमानेंट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं who among the following persons said for fundamental rights pledge to our people and a pact with the civilized world। सो ये किसने कहा था? दिस इज अगेन अ फन कोट बेस्ड क्वेश्चन एंड दिस वाज सेड बाय डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ठीक है, ये यहाँ पे लिखा है he had said that they are a pledge to our people and a pact with the civilized world। ये कोड बेस्ड क्वेश्चन वैसे यूपीएससी में तो इतना नहीं पूछती बट शायद स्टेट पीसीएस और एग्जाम्स में दिस इज बीइंग आस्क्ड। ठीक है, देन फंडामेंटल राइट्स आर which of the following justifiable, non-justifiable, flexible or rigid? So the answer will be justiciable। ठीक है, next question, the rights are called fundamental rights because it is written in the constitution, it is democratic, it is public welfare, it is essentially for personality development। देखो इसका रीज़न है कि एक तो इट इज़ रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, देन इट इज़ डेमोक्रेटिक से तो पता नहीं, इट इज़ पब्लिक वेलफेयर। हाँ, दिस इज़ ऑल्सो करेक्ट। देखो वैसे फंडामेंटल राइट्स आर, वैसे दी स्टेटमेंट्स कैन बी करेक्ट बट देखते हैं कि बेस्ट कौन सा सूट करता है ना। फिर फोर्थ क्या दिया है? इट इज़ एसेंशियल फॉर पर्सनालिटी डेवलपमेंट। हाँ, दिस इज़ करेक्ट। देन पार्लियामेंट कैन नॉट मेक अ लॉ अगेंस्ट इट। हाँ, दिस इज़ ऑल्सो करेक्ट। ठीक है, तो ये पब्लिक वेलफेयर वाला हम लोग फंडामेंटल राइट्स में नहीं इंक्लूड करेंगे। दिस इज़ समथिंग विच इज़ जनरली associated with the DPSPs। ठीक है, so we won't be including it here। then democratic और fundamental rights में ज़्यादा कुछ वो नहीं है, कनेक्शन नहीं है, रिलेशन नहीं है। ठीक है, so only 1, 4 and 5 will be correct here। so option C will be correct। ठीक है, नेक्स्ट है fundamental rights cannot be suspended, can be suspended by order of prime minister। गलत। can be suspended on will of president, ऐसा भी नहीं है। can be suspended during emergency, this is correct। ठीक है, नेक्स्ट है consider the following statements about the fundamental rights in India। they are a guarantee against state action। this is correct। then they are enumerated in part 3, again correct। they ensure social, economic and political justice, nahi, this is a feature of DPSP। है ना, फंडामेंटल राइट्स सोचने दो इसको। ये यहाँ पे भी वही लिखा हुआ है कि socio-economic justice is visualized by the Indian Constitution is mostly found in the DPSPs and to a little extent in the chapter on fundamental rights and certain other provisions also। तो फिर शायद इसको भी उन्होंने कंसिडर करा है एज अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, then they are unlike the Bill of Rights in USA, this is wrong। they are similar to the Bill of Rights in the USA, it has in fact been adopted from there। ठीक है, so only 1, 2 and 3 here will be correct। मेरे हिसाब से तो शायद ये भी दिस शुड बी रिगार्डिंग, मतलब दिस शोज फंड, दिस इज रेफरिंग टू DPSPs बट इन्होंने फंडामेंटल राइट्स में इंक्लूड कर लिया है। सो द आंसर फॉर दिस हैज़ बीन गिवन एज C। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं under which article of the Constitution of India fundamental rights have been provided to citizens। अच्छा, तो वो ये तो सिंपल है बिल्कुल, आर्टिकल 12 to 35। then which article of the Constitution gives precedence to constitutional provisions over the laws made by Union Parliament and state legislatures? So gives precedence to the constitutional provisions over the laws made by
तो ये है आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 हमने पढ़ा था, उसमें क्या दिया था कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है, आई एम सॉरी, जो भी लॉज हैं दे विल बी void if they contravene on any of the fundamental rights। ठीक है, तो ये दिया है आर्टिकल 13 में। सो the answer for this will be article 13। Next, the main object of the Article 13 of the Indian Constitution is to secure paramountcy of the Constitution regarding fundamental rights। ठीक है, in the Indian Constitution, the right to equality is granted by 5 articles। They are from 14 to 18। ये ठीक है, then right to equality is given by which of the following? So it is Article 14। इनफैक्ट आर्टिकल 14 से 18 तक है, तो सिंस इट इज़ अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, तो ये तीनों आएंगे इसमें, है ना। सो ऑप्शन सी। नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पुट्स एन एब्सोल्यूट लिमिटेशन ऑन द लेजिस्लेटिव पावर। सो इट इज़ आर्टिकल, देखो एब्सोल्यूट लिमिटेशन ऑन लेजिस्लेटिव पावर किस में लग रहा है, तो इट इज़ इन आर्टिकल 14, तो राइट टू इक्वलिटी। क्योंकि इसमें क्या होगा, इसमें मेंशन है कि अंडर आर्टिकल 14 द स्टेट शैल नॉट डिनाई एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन लॉज ऑफ लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ द कंट्री ऑन द ग्राउंड्स ऑफ, तो चलो ठीक है। सो इट पुट्स अ लिमिटेशन ऑन द लेजिस्लेटिव पावर। ठीक है, नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ इंडिया इज रिलेटेड टू इक्वालिटी बिफोर लॉ, तो वो ये आर्टिकल 14 है ये। And in which article of the Constitution equal protection of law is guaranteed? Article 14। A legislation which confers on the executive or administrative authority an unguided and uncontrolled discretionary power in the matter of application of law violates which one of the following articles of Constitution of India? Unguided or uncontrolled discretionary power violates which of the following? So it will be article 14। मतलब ये पूछ रहा है कि कोई भी अथॉरिटी को अगर बहुत सारी डिस्क्रिशनरी पावर मिल जाए, देन इट वायलेट्स विच पार्ट ऑफ द विच फंडामेंटल राइट। सो इट विल बी आर्टिकल 14 बिकॉज इक्वालिटी विल बी, मतलब अगर किसी को आपने डिस्क्रिशनरी पावर दे दी है अनकंट्रोल्ड, मतलब कि राइट टू इक्वालिटी इज़ नॉट बीइंग फॉलोड। ठीक है, क्योंकि एवरी पर्सन शुड बी इक्वल, दे शुड नॉट बी हैविंग इतना सारा पावर। ठीक है, सो राइट टू इक्वालिटी विल बी वायलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज मेंट बाय रूल ऑफ लॉ। सो क्या क्या दिया है, देखो रूल ऑफ लॉ इज अ कंसेप्ट विच वाज गिवन बाय A.B. Dicey। ठीक है, दैट थिंग यू शुड बी नोइंग फॉर योर नॉलेज। नाउ क्या क्या दिया है, वन एक्ट फॉर ऑल एंड वन जुडिशरी फॉर ऑल, ऐसा कुछ रूल ऑफ लॉ। अच्छा, देन वन एक्ट फॉर ऑल एंड वन स्टेट फॉर ऑल, दिस इज नॉट करेक्ट। वन स्टेट फॉर ऑल एंड वन जुडिशरी फॉर ऑल, अगेन ऐसा कुछ नहीं है। ऑल एक्ट्स फॉर वन एंड वन जुडिशरी फॉर ऑल, ये भी नहीं है। अच्छा, सो द आंसर फॉर दिस विल बी ए, वन एक्ट फॉर ऑल। वन एक्ट मतलब वन रूल, वन लेजिस्लेशन फॉर ऑल एंड वन जुडिशरी फॉर ऑल। ठीक है, दिस विल बी करेक्ट हियर। नेक्स्ट देखते हैं, the prohibition of discrimination on the grounds of religion is a fundamental right classifiable under which of the following? Prohibition of discrimination on the ground of religion is a fundamental right which वही पूछ रहा है कि आर्टिकल 15 किस में आता है, सो दैट इज राइट टू इक्वालिटी। ठीक है, इसमें ऊपर वाले में कुछ है क्या हाईलाइट करने के काम का, देखो। हाँ, यू कैन हाईलाइट दिस सेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, which one of the following fundamental rights was amended as a result of the decision of the Supreme Court of India in State of Madras versus
Champakam Dorai Rajan case. So it was the right to equality. That is Article 14, which वो Article 14 नहीं वो Article 15 है ना, उसको करा था change, and उसमें there was the provision of कि women और other backward section, backward नहीं, socially and economically backward sections को affirmative action देने का that portion was added. ठीक है, so it was Article 15 which was amended via the Champakam Dorai Rajan case. ठीक है, so this is important, you should be knowing this. यहाँ पे वही लिखा है कि in Article 15 Clause 4 was added by the first constitutional amendment of 1951 for making special provisions for the advancement of socially and educationally backward classes. ठीक है, so बस इतना ही है. Next है under which article of the constitution reservations in admission to educational institutions including private and unaided to OBC, the ST and SCs are made. So it is in Article 15. Article 15 का भी हमें clause पूछा है, so it will be clause 5. ठीक है, clause 5 of the Article 15 उससे related है, reservation for OBC, SC, STs in educational institutions. ठीक है, तो यहाँ पे वही दिया है. नेक्स्ट देख लेते हैं. The provisions of reservation of OBC is made in the constitution under which of the following articles? So वही Article 15 और 16 में है. दोनों का जो clause 4 है that is related to socially and educationally backward classes and SC ST वगैरह के लिए. ठीक है, so answer will be option C. ठीक है, next, which of the following articles of the Indian Constitution guarantees equality of opportunity to all citizens of India in matters relating to public employment? So that will be Article 16. उसका भी इन्होंने clause पूछा है हमको, so it will be clause 1 and clause 2. ठीक है, next देखते हैं which one of the following is not included in the fundamental right to equality as enshrined in the Indian Constitution. हमें not included बताना है. क्या क्या है? Equality before law है, सोशल इक्वलिटी, अच्छा ये भी है, इक्वल अपॉर्चुनिटी ये भी है, इकोनॉमिक इक्वालिटी ये नहीं है कहीं भी मेंशन. इकोनॉमिक इक्वालिटी का मतलब क्या होगा कि सबके पास सेम अमाउंट ऑफ पैसे हैं. ठीक है, तो ये तो फिर एक कम्युनिस्ट कॉन्सेप्ट हो जाएगा. ठीक है, सो दिस इज नॉट मेंशन्ड एनीवेयर इन द फंडामेंटल राइट्स. ठीक है, सो द आंसर विल बी ऑप्शन डी. ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं. Assertion and reasoning question है next. The state can treat unequal differently with the objective of creating a level playing field in the social, economic and political spheres. Then reason क्या है? Among equals the law should be equal and equally administered. So देखो इसमें क्या दिया है कि state can treat unequal differently. हाँ, this is correct है ना. इसका मतलब क्या है? This is affirmative action, जिससे जिनके पास कम है, the disadvantaged sections of our society, उनके लिए the state will act as a welfare state, whereas for others who are extremely rich the state may have a lot of taxation. भी उनका काफ़ी ज़्यादा होता है ना, HNIs वगैरह का, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स का टैक्सेशन काफ़ी हाई होता है. ठीक है, सो देयर डिफरेंट थिंग्स आर बीइंग डन बाय द स्टेट फॉर डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द पॉपुलेशन. ठीक है, एंड दिस इज प्राइमरली एम्ड एट ensuring a level playing field in social, economical and political spheres. ठीक है, now reason क्या दिया? among equals the laws should be equal and equally administered. तो ये भी सही है. So both assertion and reasoning here are true and R is the correct explanation of A. ठीक है, next देखते हैं. Consider the following statements. The Supreme Court of India has held in some judgments that reservation policies made under Article 16 Clause 4 of the Constitution of India would be limited by Article 335 for maintenance of
efficiency of administration. ठीक है, दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट. आर्टिकल 335 जो है ना वो एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को रिलेटेड है. और जो रिजर्वेशन पॉलिसीज होती हैं दे आर लिमिटेड बाय द फैक्ट दैट द एफिशिएंसी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन शुड नॉट बी अफेक्टेड. ठीक है, सो द फर्स्ट स्टेटमेंट हियर इज करेक्ट. सेकंड क्या है, आर्टिकल 335 of the constitution defines the term efficiency of administration. So this is wrong. कहीं पे भी डिफाइंड नहीं होता है. ठीक है, ये काफ़ी सारे सवाल ऐसे पूछते हैं कि हैज़ दिस टर्म बीन डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, देन द आंसर इज जनरली नो. ठीक है, सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस विल बी स्टेटमेंट सी. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. Under which Amendment Act was the reservation and promotion for scheduled castes and scheduled tribes ensured by inserting clause 4A in Article 16? अच्छा, तो हमें पूछा है कि under which amendment was this introduced? So it was the 77th Amendment of 1995, जिसके अंडर reservation in promotion and consequential seniority ये भी इंट्रोड्यूस किया था तभी. ठीक है, सो द आंसर फॉर दिस विल बी ऑप्शन सी. ठीक है, नेक्स्ट 29th क्वेश्चन में क्या दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग एनेबल्ड सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टू इंड्यूस अ फंडामेंटल राइट टू इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क. सो फर्स्ट क्या दिया है, द वर्ड सोशलिस्ट इन द प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन. हाँ, दिस वुड हैव, ये थोड़ा ऐसे जेनरिक सा क्वेश्चन दिया है. फिर क्या है, A read with Article 14 of the Constitution. हाँ, socialist as well as equality से equal pay for equal work can be derived. फिर A read with Article 16, that is opportunity for equal opportunity for public employment. तो ये भी सही रहेगा. ठीक है, therefore all of these are correct in this case. So this is a very generic sort of a question. Next देख लेते हैं हम लोग. Which of the following articles read with the word socialist used in the preamble of the Indian Constitution enabled the Supreme Court to deduce? Same question फिर से पूछा है, कब पूछा है. अच्छा, UPPCS के ऐसे consecutive years में बार बार पूछा है. So it will be, देखो, equal pay for equal work. तो एक तो equality रहेगा और एक रहेगा Article 16, that is opportunity for employment, equal opportunity for employment. ठीक है, नेक्स्ट है, ये यहाँ पे भी दिया है, रणधीर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस. सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट construing Article 14 and 16 in the light of preamble and Article 39D, we are of the view that principle of equal pay for equal work is deducible for these articles. ठीक है, तो किन किन को लिया, 14, 16, Article 39D and the preamble. ठीक है, सो दिस इज इम्पॉर्टेंट, यू शुड बी नोइंग कि आर्टिकल 39D, 14, 16 तीनों को लिया है अलॉन्ग विद द प्रियम्बल. ठीक है, नेक्स्ट, अंडर व्हाट प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अनटचेबिलिटी हैज बीन अबॉलिश्ड? तो आर्टिकल 17. विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इरेडिकेट्स अनटचेबिलिटी? अगेन आर्टिकल 17. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स, फिर से सेम क्वेश्चन बार बार पूछा है ना. नेक्स्ट देखते हैं, ये सारे आर्टिकल 17 के. अंडर विच आर्टिकल शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैव बीन ग्रांटेड फंडामेंटल सोशियो इकोनॉमिक एंड कल्चरल राइट्स? देखो, 17 है अनटचेबिलिटी का, देन 18 है हमारा अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, 19 फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन. ठीक है, एंड देन यू हैव आर्टिकल 20, दैट इज अरेस्ट इन केस ऑफ कन्विक्शन, है ना. तो इसमें सबसे सूटेबल क्या रहेगा, इट विल बी आर्टिकल 17. ठीक है, सो अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी विल बी द मोस्ट सूटेबल फॉर दिस आंसर. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ फंडामेंटल राइट इनकॉर्पोरेट्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनटचेबिलिटी? अगेन वही पूछा है, राइट टू इक्वालिटी में आता है ये, आर्टिकल 14 to 18 वाले में आएगा ना, आर्टिकल 17 उसमें है. नेक्स्ट, प्रोहिबिशन एंड
abolishment of untouchability may be achieved by making laws, improving education, public awareness, providing ये सारे ही they all of them can be included. But since all of these का आंसर कोई ऑप्शन नहीं है, then you go with 1, 2 and 3. ठीक है, because these three are the most probable ones. Next है assertion and reasoning question है. assertion है untouchability is the worst form of structural violence. ठीक है, untouchability has been practiced in the name of religious sanctions. This is also correct. So in this case both of these statements are correct. ठीक है, यहाँ पे assertion and reasoning में both these statements are correct. ठीक है, and it the reason also explains the assertion because it is the worst form of structural violence because वो एक religious sanction के तौर पे ले रहे हैं, है ना. नेक्स्ट है which one of the following articles of the Indian Constitution belongs to a different category. तो इसका कुछ स्ट्रेंज क्वेश्चन है इसका. आई डाउट इफ देयर इज एनी आंसर गिवन इवन नहीं ना. हाँ, तो ये थोड़ा वेग क्वेश्चन है. वी विल स्किप दिस. इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन राइट टू फ्रीडम इज ग्रांटेड बाय 4 आर्टिकल्स विच आर. सो राइट टू फ्रीडम कहाँ से कहाँ तक है? आर्टिकल 19 से 22 तक है. ठीक है, नेक्स्ट which of the following freedoms is not guaranteed by the Indian Constitution under Article 19? Freedom to assemble हमें not guaranteed बताना है. Freedom to assemble peacefully है. Freedom to own, acquire and dispose of property. Freedom to move freely है. Freedom to practice ये है. So B will be the answer here. ठीक है, B has been removed. It was earlier under Article 31 but then it was repealed and it was made a legal right under Article 300A. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. हाँ, वही 44th अमेंडमेंट एक्ट से इसको रिमूव किया था, वही दिया यहाँ पे. इन विच आर्टिकल द फंडामेंटल राइट्स टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. सो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन 19 में है. फ्रीडम ऑफ प्रेस कहाँ है? 19 में. देन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर्स फ्रीडम ऑफ प्रेस? 19. फिर विच कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट गिव राइट टू फ्रीडम ऑफ प्रेस बट इट इज इंक्लूडेड इन क्या? Indian Constitution does not give right to freedom of press, but it is included in Article 19(1)(a). ठीक है, freedom of speech and expression में ही it is included, freedom to press. ठीक है, in freedom of newspapers again Article 19(1) clause A. Next है, the Supreme Court has held that hoisting the national flag atop the private buildings is a fundamental right of every citizen under which of the following articles. तो देखो 14 है राइट टू इक्वालिटी, 19 है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. सो इसमें आएगा, स्पीच एंड एक्सप्रेशन में आएगा बिकॉज इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन. ठीक है, नेक्स्ट है एज अ पार्ट ऑफ द राइट टू फ्रीडम विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म अ पार्ट ऑफ फ्रीडम टू असेंबल पीसibly विदाउट आर्म्स. डज नॉट फॉर्म अ पार्ट हमें बताना है. सो घेराव ऑफिशियल्स नॉट परफॉर्मिंग देयर ड्यूटीज. पीसफुल असेंबली तो है. पीपल हु असेंबल शुड नॉट बियर आर्म्स. दिस इज ऑल्सो करेक्ट. State can make a law imposing reasonable restrictions. This is also correct. ऑप्शन ए इज़ रॉन्ग. ऐसे कोई भी ऑफिशियल को घेराव करके दैट इज़ नॉट करेक्ट. ठीक है, तो यू हैव टू बी वेरी पीसफुल इन योर प्रोटेस्ट्स. नाउ विच बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड्स a citizen's freedom of expression may not be subjected to restriction. अच्छा, तो हमें वी आर बीइंग आस्क्ड द ग्राउंड्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन ऑफ आर्टिकल 19 क्लॉज ए, मतलब क्लॉज 1A. सो सोवरेनिटी ऑफ इंडिया है रिस्ट्रिक्शन, पब्लिक ऑर्डर है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी है ना. ये नहीं है. अनबिकमिंग क्रिटिसिज्म कहीं पे भी मेंशन नहीं है. ठीक है, इफ़ यू लुक एट द बेयर एक्ट इट इज़ नॉट मेंशन्ड देयर. ठीक है, सो आंसर विल बी ऑप्शन डी. नाउ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ऑन एक्सरसाइज ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन under Article 19 Clause 2 are justified in the interest of which of the following conditions? Security of state में है, defamation में है, sedition है, public order है. देखो इसमें sedition कहीं पे भी mention नहीं है. If you look at the Bear Act वहाँ पे sedition mention नहीं था. public order, defamation, security of state है ना. We had just read about this earlier. तो the answer for this will be option C. ठीक है. Next, which article of the Constitution of India
of Indian Republic relates to protection of life and personal liberty, it is Article 21. In which article of the Constitution doctrine of due process of law is included? It is again Article 21. Due process of law मतलब natural justice. ठीक है. नेक्स्ट है, which article of the Indian Constitution protects a person's right to travel abroad? Travel abroad is under Article 21 and to travel within the country it is under Article 19. ठीक है. This is very important, you should be knowing this, है ना. And I'll just highlight this कि मेनका गांधी केस में this was said. ठीक है. Next, identify the incorrect statement regarding judicial interpretation of Article 21 after Supreme Court's verdict in Menka Gandhi case. So we have to identify the incorrect statement here. The burden lies on the petitioner to prove that the procedure established by law, which deprives him of his life or personal liberty, is arbitrary. It lies on the petitioner बोला है इसमें. अच्छा. Then this is wrong. देखो petitioner पे नहीं होता है. It is generally on the one who is restricting the rights. That means the government. ठीक है, not the petitioner. ठीक है, जिसने restrict करी है, he will be the one who will be proving के procedure established by law से कर रहे हैं, मतलब जो भी है ना. So कि arbitrary नहीं है. It is up to the government to prove that it is not arbitrary. ठीक है. Then procedure established by law is by and large synonymous with procedural due process as prevalent in the USA. So this is correct. ठीक है. तो हमें incorrect ढूंढना था, so this won't be the answer. Next देखते हैं. Articles 21, 19 and 14 are not mutually exclusive. They have a lot of overlapping areas. ठीक है. Then right to life includes right to live with dignity. This is also correct. फिर question not attempted, ये पता नहीं क्या है. ठीक है. So the answer for this will be option A. ठीक है. Next देखते हैं. Which of the following has been recognized as a fundamental right by the Supreme Court of India? Fundamental right हमें बताना है ना. So right to shelter, right to travel abroad is a fundamental right. Then right to equal pay for equal work. This is also fundamental right, and right to shelter is also a fundamental right under ये 21 में भी आता है और हाँ 21 में ही आएगा राइट टू शेल्टर. ठीक है. सो ऑल ऑफ दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स. ठीक है. इसमें हाँ ये रहा. एक तो चमेली सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी केस था. द सुप्रीम कोर्ट हैड हेल्ड दैट राइट टू लाइवलीहुड अंडर आर्टिकल 21 ऑल्सो इंक्लूड्स राइट टू शेल्टर. ठीक है. Then in the Satwant Singh versus Union of India, they had held that the right to travel abroad is a fundamental right. Then Ranveer Singh versus Union of India, the Supreme Court had held that Article 1416, in the light of the preamble, and Article 39D, they had given the concept of equal pay for equal work. ठीक है. Next, which one of the following articles is available under Article 19 Clause D, read with Article 21? सो रेड विद आर्टिकल 21 में क्या रहेगा कि दोनों वो कंबाइन करके अगर देखें सो क्या रहेगा. आर्टिकल 19(1) क्लॉज डी क्या है? इट इज़ रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ मूवमेंट. ठीक है. फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है वो. ठीक है. उसके बाद वो बोल रहे हैं कि आर्टिकल 21 को अगर हम उसके साथ में पढ़ेंगे देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल बी applicable. So it will be, this is a very tough question according to me, है ना. यहाँ पे दिया है इसलिए आई एम आंसरिंग कि आर्टिकल राइट टू प्राइवेसी है. इसको देख लेते हैं कि क्यों है आंसर. देखो, इन द गोविंद वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी एंड एएनआर एंड ये जो दो केसेस हैं
इसमें सुप्रीम कोर्ट हैड हेल्ड दैट राइट टू प्राइवेसी इज इम्प्लिसिट इन आर्टिकल 21, ये तो हमें पता है। और है ना, and in the context of surveillance it has been held that if intrusive and serious intrusions on privacy of the citizens can infringe the freedom of movement under article 19 and article 21, तो ऐसे है कि ज़्यादा ही सर्वेलेंस करा अगर, then both of these rights can be affected, ठीक है, नेगेटिवली इम्पैक्टेड, देयरफॉर ज़्यादा सर्वेलेंस नहीं करना है बिकॉज इट कैन इन्फ्रिंज अपॉन द फ्रीडम ऑफ मूवमेंट ऑफ दैट पर्सन, ठीक है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, राइट टू प्राइवेसी, यहाँ पे भी ये वाला काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। राइट टू ट्रैवल अब्रॉड, राइट टू लाइवलीहुड, कौन से जजमेंट्स में आ रहा है ये, ठीक है, दिस यू शुड बी नोइंग। नेक्स्ट देखते हैं, इसको लर्न कैसे करें। देखो, चमेली सिंह, चमेली मतलब फ्लावर, है ना, तो आप ऐसे सोचिए कि किसी ने अपना घर डेकोरेट करा है फ्लावर्स से, ठीक है, तो राइट, घर या शेल्टर वो फ्लावर्स से डेकोरेट करा है। देन सतवंत सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में क्या है, राइट टू ट्रैवल अब्रॉड इज़ अ फंडामेंटल राइट। सो सतवंत सिंह, तो आप ऐसे सोचिए कि ये सिख नाम लग रहा है ना, पंजाब साइड का नेम लग रहा है, एंड यू माइट बी डूइंग दैट मोस्ट ऑफ द पीपल देयर हैव माइग्रेटेड अब्रॉड, ठीक है, दैट वे यू कैन रिमेंबर दिस। देन रणधीर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, तो इसको ऐसे लर्न कर लो कि इफ़ पीपल डू नॉट गेट इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क देन दे विल रन अवे फ्रॉम देयर वर्क प्लेसेस, ठीक है, रन से रणधीर सिंह लर्न हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, राइट टू प्राइवेसी इज प्रोटेक्टेड as an intrinsic part of right to life and personal liberty. Which of the following in the Constitution of India correctly and appropriately implies the above statement? कि right to privacy is being protected as an intrinsic part of right to life and personal liberty. तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है, वही आर्टिकल 21 में आता है ये। सो आर्टिकल 21 एंड द फ्रीडम्स गारंटीड अंडर पार्ट 3, ठीक है। सो दिस इज अ फेयरली सिंपल क्वेश्चन, सो मैं रेड, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, under which of the following articles of the Constitution of India has the Supreme Court of India placed the right to privacy, again article 21। then right to privacy is protected under which article, article 21 में है ना। अभी देखिए, यूपीएससी प्रीलिम्स में दिस एग्जैक्ट क्वेश्चन हैज़ बीन रिपीटेड ट्वाइस, ठीक है, सो दे डू रिपीट क्वेश्चन फ्रॉम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एज वेल, ठीक है। नेक्स्ट है, under which article of the constitution, which article of the constitution safeguards one's rights to marry the person of one's choice, again it comes under article 21 only, ठीक है। लता सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी केस में बोला था ये राइट टू मैरी इज अ कॉम्पोनेंट ऑफ राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो नेक्स्ट है, इसको लर्न कैसे करेंगे, लता सिंह, लता सिंह, तो आप ऐसे इमेजिन करिए कि कोई गर्ल है लता नाम की एंड शी वांट्स टू मैरी समवन ऑफ हर चॉइस, तो इसलिए ये वाला जजमेंट आया, ठीक है, दैट वे यू कैन रिमेंबर दिस। नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉल विद इन द पर्व्यू ऑफ आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्या क्या दिया है, डज नॉट फॉल बताना है हमें। सो मेडिकल एड टू इंजर्ड बाय अ डॉक्टर, अच्छा, सो दिस विल कम अंडर आर्टिकल 21 बिकॉज राइट टू लाइफ, है ना। सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, अगेन राइट टू लाइफ में आएगा। पोल्यूशन ऑफ, ये भी है, पोल्यूशन ऑफ क्वालिटी ऑफ द क्वालिटी ऑफ वाटर, दिस इज ऑल्सो अंडर राइट टू लाइफ। एंड कैपिटल पनिशमेंट, सो कैपिटल पनिशमेंट में क्या होगा, डेथ पेनल्टी वगैरह, सो दिस वोंट बी कमिंग अंडर राइट टू लाइफ, ठीक है, इट इज़ एन एक्सेप्शन टू द सेम। सो यहाँ पे वही दिया है कि बछान सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस था, इट इज़ नाउ, ये यहाँ पे दिया है कि अंडर द बचान केस इट हैज द सुप्रीम कोर्ट हैड सेड दैट जो सेक्शन 302 ऑफ आईपीसी है दैट इज़ रिलेटेड टू
capital punishment is not violative of Article 21 of the Constitution because it is being given only for very serious crimes. ठीक है, सो ये है बचान सिंह केस में दिस वाज मेंशन्ड कि कैपिटल पनिशमेंट इज नॉट वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 21. ठीक है, बाकी जो है मेडिकल एड टू इंजर्ड है ना, वो इस वाले केस में मेडिकल एड टू इंजर्ड बोला था डॉक्टर बाय परमानंद कटारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस. देन सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस वही विशाखा केस में बोला था कि इट कम्स अंडर राइट टू लाइफ. देन pollution of the quality of air comes under the Subhash Kumar versus State of Bihar case. So all of these cases are not very important. ये बचान सिंह केस इज स्टिल वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको पता होना चाहिए. ठीक है, बाकी दीज आर नॉट एज इम्पॉर्टेंट. बस थोड़ा सा कि परमानंद कटारा, जस्ट रीड इट अ कपल ऑफ टाइम्स सो दैट यू आर एबल टू रिकग्नाइज इट इन केस इट कम्स. ठीक है, फिर सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस वही विशाखा गाइडलाइंस. देन सुभाष कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार पोल्यूशन. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. Which one of the following rights cannot be suspended or restricted even during emergency? It is Article 20 and Article 21. ठीक है, तो ये यहाँ पे राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी दिया है, 20 दिया नहीं है. तो ठीक है, नेक्स्ट है द स्कोप ऑफ आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज एक्सपैंडेड टू इंक्लूड राइट टू एजुकेशन because of the decision of Supreme Court in which of the following cases. So देखो, इसमें हमें पता है कि परमानंद कटारा केस नहीं है. दिस वाज रिगार्डिंग मेडिकल इमरजेंसीज, राइट टू ये मेडिकल एड. इसको भी लर्न कर लो, अब पूछ ही रहे हैं अगले सवाल में ना. ठीक है, तो इसको लर्न कर लेते हैं. कटारा, कटारा मतलब सर्जरी से रिलेट कर सकते हो आप. ये सर्जरी इज़ अलाउड आफ्टर इन केस ऑफ मेडिकल इमरजेंसीज. ठीक है, तो परमानंद कटारा, कटारा सर्जरी मतलब मेडिकल एड से कुछ भी रिलेटेड है. विशाखा गाइडलाइंस तो आपको पता ही होगा है ना, इट इज़ वेरी कॉमनली नोन. देन सुभाष कुमार क्या है, क्वालिटी ऑफ, ठीक है, क्वालिटी ऑफ एयर के रिलेटेड है. तो हाँ, ऐसे कर लो, सुभाष का जो सब है उसे सब पार एयर क्वालिटी. ठीक है, ऐसे करके यू कैन रिमेंबर दिस. सब पार एयर क्वालिटी के बारे में किसने बात करी थी, सुभाष कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार केस में. ठीक है, नेक्स्ट राइट टू एजुकेशन किस में आएगा. देखो, परमानंद कटारा हमने अभी पढ़ा, इट इज़ रिलेटेड टू मेडिकल एड. चमेली सिंह वी हैड रेड इट अर्लियर, दिस वाज रिगार्डिंग राइट टू शेल्टर. देन गोविंद वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश में नहीं है. उन्नी कृष्णन वर्सेस आंध्र प्रदेश में है. ठीक है, सो आप इसको लर्न कैसे करेंगे, वही थोड़ा सा साउथ इंडियन नाम है और साउथ इंडियंस यू माइट हैव सीन के दे आर वेरी गुड इन स्टडीज़ है ना, ये सब. सो दैट वे यू कैन लिंक दिस एंड रिमेंबर इट. ठीक है, उन्नी कृष्णन एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश केस में वही राइट टू एजुकेशन वॉज गारंटीड अंडर आर्टिकल 21 इटसेल्फ. ठीक है, सो दिस इज इम्पॉर्टेंट. नेक्स्ट देख लेते हैं. The right to education to all children between the age group of 6 to 14 years is a fundamental right. ठीक है, और किस में आता है, it comes under article 21A. ठीक है, and how was it introduced? It was introduced by the 86th Constitutional Amendment Act. ठीक है, this is also very important. Next देखते हैं, when was the right to education added to the amendment in the Constitution of India? So it was added by in 2010. ठीक है, 2010 में भी जो 1 अप्रैल था ना उसको ऐड करा था, और इसको आप वही अप्रैल फूल्स डे से लर्न कर सकते हो कि अप्रैल फूल्स डे के दिन में वी हैड द राइट टू एजुकेशन विच वाज इंट्रोड्यूस्ड. ठीक है, नेक्स्ट है, हाँ ये यहाँ पे दिया है,
देखो आर्टिकल 21A 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू आया है ना. नाउ एंड द राइट of children to free and compulsory education, that is under RT Act 2009, represents the legislation envisaged under Article 21A. And the right RTE, right to education, came into effect on 1st April 2010. ठीक है. This is something that you should remember. Next, which one of the following is a human right as well as a fundamental right under the Constitution of India? क्या क्या mentioned है? Human as well as fundamental right. So क्या क्या दिया है? Right to information, right to work, right to education will be the answer. ठीक है. Next assertion and reasoning question है, the state shall provide free and compulsory education to all children of the age group of 6 to 14 years of age. So this is correct. Next reason क्या है, in a democratic society right to education is indispensable in the interpretation of the right to development as a human right. So both these statements are correct and the reason justifies the assertion as well. ठीक है. So the answer will be option A. Next, which of the following are envisaged by the right against exploitation in the Constitution of India? Abolition. हाँ, क्या क्या envisaged as a by the right against exploitation. अच्छा, so abolition of untouchability. नहीं, ये सब नहीं है. आर्टिकल 23 और 24 है ना, वो है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन. ठीक है. सो दिस वोंट बी करेक्ट. abolition of untouchability नहीं है. It is prohibition of human trafficking and forced labor. This is correct. Then we have prohibition of employment of children in factories. वो भी सही है. Factories and mines, that is also correct. And protection of interests of minorities, वो भी नहीं है. ठीक है. So these two are correct here. So the answer for this will be option 2 and 3. ठीक है. Next question देखते हैं, which provision of the fundamental rights is directly related to the exploitation of children? So it is article 24. ठीक है. वही है कि prohibition of employment of children in वो कौन से इंडस्ट्रीज होते हैं, hazardous industries. ठीक है. Next question है, article 24 of the Constitution of India prohibits the employment of children in factories related to hazardous works. Such prohibition is, ये इसमें आएगा, it is absolute prohibition. Hazardous factories के केस में it is absolute prohibition, but when it comes to employment then it is a reasonable prohibition. ठीक है. तो ये आपको पता होना चाहिए. माइन एंड फैक्ट्रीज हजार्डस एम्प्लॉयमेंट वाली, उसमें इट इज़ एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन. नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द आर्टिकल 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. सो क्या क्या दिया है, डबल जियोपार्डी का क्लॉज. आर्टिकल 20 इज कन्विक्शन वाला है ना, प्रोटेक्शन अगेंस्ट कन्विक्शन फॉर सर्टन ऑफेंसेस. ठीक है. तो उसमें एक तो सेल्फ इंक्रिमेशन है ना, प्रोहिबिशन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमेशन है. डबल जो पार्टी है एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ है. ठीक है, नॉट अ पार्ट. देन प्रोहिबिशन अगेंस्ट टॉर्चर, नहीं, दिस इज नॉट मेंशन अंडर आर्टिकल 20. ठीक है. सो सी विल बी दी आंसर यहाँ के केस में. नेक्स्ट देखते हैं, which article under fundamental rights is directly related to the exploitation of children. So it is article 24. Next, which of the following articles is related to, same question फिर से पूछा है. Same question. Now, which article of the Constitution provides protection to the accused regarding conviction from double bar and self-incrimination? Again, similar question. 20 Article 20. An accused of an offence cannot be compelled to be a witness against himself. This comes under Article 20, Clause 3. Okay. Next, we have no person shall be prosecuted and punished for the same offence more than once. Again, Article 20. Which article gives safeguard to fundamental rights of an arrested person? Arrested person रहेगा Article 22 में. Article 20 में रहेगा convicted person के लिए.
कन्विक्शन के लिए. एंड आर्टिकल 22 विल बी रिगार्डिंग अरेस्ट एंड डिटेंशन. ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन द टू. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड. आर्टिकल 22.1, अच्छा clauses दिए हैं and we have to match them correctly. So, right to be defended by a legal practitioner of his or her choice. देखो, this is correct. मेरे को ऐसे clauses तो याद नहीं है, तो that way it is a tough question. Next क्या है, no law providing for preventive detention shall authorize the detention for a period longer than 3 months. This is also correct. ठीक है. And Parliament may by law prescribe the circumstances under which a person may be detained for a period longer than 3 months. So ये यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, इसमें ऐसा रहता है कि एक उनको बोर्ड बनाना होता है, एडवाइजरी बोर्ड, and they will be the ones who will be deciding whether or not to increase the time period for detention. ठीक है, so this will be incorrect यहाँ आपके केस में, and we have to find the incorrect one. So this will be the answer. Next, no person who is arrested shall be in custody without being informed as soon as may be of the grounds of such arrest. This is also correct. ठीक है. Next देखते हैं, under the Preventive Detention Act, a person can be arrested without trial for a period of how many months? So it is 3 months. ठीक है. Under preventive detention का same question फिर से पूछा है. Then according to Constitution of India, the central government has a duty to protect states from internal disturbances. This is correct. Constitution of India exempts the states from providing legal counsel to a person being held for preventive detention. This is also correct. ये बहुत ही मतलब हमें लगेगा कि नहीं ऐसा तो कहीं नहीं दिया होगा कॉन्स्टिट्यूशन में, बट दिस इज ऑल्सो अ करेक्ट स्टेटमेंट. ठीक है. According to the Prevention of Terrorism Act of 2002, confession of the accused before the police cannot be used as an evidence. So this is पोटा एक्ट का. दिस इज, देखो यहाँ पे ना द आंसर गिवन इज रॉन्ग आई थिंक. ठीक है, यहाँ पे द आंसर शुड बी टू ऑफ देम आर करेक्ट हियर. ठीक है, हमें क्या बताना है, नॉट करेक्ट, हाँ करेक्ट बताना है ना. So we had read about this earlier also. Wait, I'll just show you. एक second. यहाँ पे हमने पढ़ा था कि we had done the same question earlier in the notes. So यहाँ पे भी mentioned है कि there are two statements which are correct. यहाँ पे this is 2 का answer will be B. ठीक है, so that is the correct answer. और इसमें मैंने बताया भी था कि जैसे प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट 2002 है और दिया है कि कन्फेशन ऑफ द अक्यूज बिफोर द पुलिस कैन नॉट बी यूज एज एन एविडेंस. ठीक है, तो यूपीएससी ऑफन प्लेज विद दीज वर्ड्स है ना. इट ऑफन स्विचेस द वर्ड्स और स्वॉप्स द वर्ड्स. तो वो क्या करेगा, कैन को कैन नॉट लिख देगा. ठीक है, या कैन नॉट को कैन लिख देगा. तो दिस इज़ वेरी कॉमन. ठीक है, सो बी वेयर वेन एवर यू सी के कहीं पे भी क्वेश्चन में नॉट मैंशनड है, कैन मैंशनड है, जस्ट अपने पेंसिल से ट्राई टू इनसर्कल दैट सो दैट यू आर अ बिट केयरफुल व्हाइल अटेम्प्टिंग दैट स्टेटमेंट. ठीक है, यूजुअली वो क्या स्विच कर देते हैं. ठीक है, सो द आंसर फॉर दिस विल बी टू स्टेटमेंट्स हियर आर करेक्ट. एक तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट और सेकंड स्टेटमेंट. ठीक है, ये जो लीगल काउंसिल है, दिस द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज इंडीड एक्सेप्ट स्टेट्स फ्रॉम प्रोवाइडिंग लीगल काउंसिल टू अ पर्सन हु इज हेल्ड अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन. ठीक है, यहाँ पे आर्टिकल 22 में आएगा ना प्रिवेंटिव डिटेंशन, यहाँ पे मैंशन था, ये रहा कि इट इज़ नॉट मैंडेटरी फॉर स्टेट्स to provide access to legal counsel to the person who has been held for preventive detention. ठीक है, so ये था. ठीक है, so the answer given here is, I think it is wrong. It should be only 2 here are correct. ठीक है, now next है question number 84. ये यहाँ पे देख ये पढ़ सकते हैं कि
As per the Prevention of Terrorism Act of 2002, a confession made by a person before a police officer and recorded by the police officer shall be admissible in the trial of such person for an offence under this act. ठीक है? Now, with reference to India, consider the following statements. When a prisoner makes out a sufficient case, parole cannot be denied to such person because it becomes a matter of his or her right. ठीक है? नेक्स्ट देख लेते हैं. द state governments have their own prisoners release on parole rules. So this is correct. देखो हमको पता है कि स्टेट गवर्नमेंट का वो पब्लिक ऑर्डर लॉ एंड पब्लिक ऑर्डर कम्स अंडर द स्टेट लिस्ट. ठीक है. सो इट इज़ अप टू देम टू मेक सच रूल्स. ठीक है. सो द सेकेंड स्टेटमेंट हियर इज करेक्ट. अभी फर्स्ट स्टेटमेंट में मैंने अभी आपको बोला था जहाँ पे भी कैन नॉट नॉट कहीं पे भी है ना, जस्ट इनसर्कल दैट. नेक्स्ट we'll again read the statement. When a person makes out a sufficient case, अभी ये बहुत जेनरिक चीज़ दी हुई है. सफिशिएंट केस का मतलब क्या हुआ, ऐसे कुछ भी डिफाइंड नहीं है. ठीक है. ऐसे तो मैं भी बोल दूँ, मैं क्या मतलब कोई बड़ा सा कोई हार्डेंड क्रिमिनल होगा, वो बोल देगा कि हाँ मेरा सफिशिएंट केस है, मेरे को पैरोल बन रहा है. ठीक है. सो इट इज़ नॉट अ राइट ऑफ दैट पर्सन, तो दिस स्टेटमेंट विल बी रॉन्ग ओवर हियर. ठीक है. सो द आंसर शुड बी ऑप्शन बी. Parole is the release of a person either temporarily for a special purpose or completely for the before the expiry of a sentence. ठीक है. On the promise of good behavior. Parole is not recognized as a right in India, है ना, and it is just something which is offered to some people because of their good behavior. ठीक है. Parole is not, मतलब इंडिया में नहीं है राइट, बाकी फॉरेन कंट्रीज काफ़ी सारों में होती है, इंडिया में इट इज़ नॉट अ राइट. ठीक है. अभी नेक्स्ट देख लेते हैं. वी डू हैव द प्रिजन एक्ट ऑफ 1894 एंड प्रिजन एक्ट ऑफ 1900, बट दीज एक्ट्स आर मॉडल एक्ट्स. ठीक है. क्योंकि ज़्यादातर स्टेट गवर्नमेंट्स के दे हैव देयर ओन गाइडलाइंस. ठीक है. नेक्स्ट देखते हैं द प्रोविजन ऑफ राइट टू फ्रीडम. ये हमें पता होना चाहिए बिकॉज वंस दे हैव आस्क्ड द क्वेश्चन, एटलीस्ट मतलब एक बार पूछ चुके हैं ना, so they might repeat such a question. ठीक है. so do remember this कि जो grant of parole है, it is governed by the rules made under prison act of 1894 and prison act of 1900. so how will you remember the years? देखो 1900, 1900 देखो 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज फॉर्म्ड. उसी के बाद में 1895, 1900, 1905 दिस वाज द पीरियड ऑफ स्वदेशी मूवमेंट. ठीक है. और इसी टाइम पे वो सब स्टार्ट हो गया था कि जो हमारे नेशनल लीडर्स थे दे वर बीइंग हेल्ड एंड दे वर बीइंग अनफेयरली पुश्ड इनटू जेल्स. ठीक है. तो उससे आप लर्न कर लो प्रिजन एक्ट 1894 एंड 1900. ठीक है. Now, many state governments have also formulated guidelines to bring out objectivity and facilitate decision making to determine whether a parole needs to be granted or not. Such decisions are taken in accordance with guidelines framed from time to time. So ये वही एक एग्जांपल दिया है कि prisons बॉम्बे फरलो parole rules हैं. सो दिस इज़ नॉट एज इम्पॉर्टेंट. ठीक है. ये बस एग्जांपल दिया है कि बॉम्बे के लिए these are the rules which are in place. ठीक है. नेक्स्ट है द प्रोविजन ऑफ राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग. फ्रीडम ऑफ रिलीजन दैट इज आर्टिकल 25, है ना. क्या फ्रीडम ऑफ प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन, दिस इज करेक्ट. राइट टू वेयर एंड कैरी किरपान्स बाय सिक्स, दिस इज ऑल्सो करेक्ट. ठीक है. दिस हैज़ बीन रिकग्नाइज्ड एज अ राइट. देन कृपान मतलब वो एक छोटा सा ब्लेड नहीं, नाइफ टाइप होता है. ठीक है. उसको बोलते हैं. ठीक है. इन स्टेट्स राइट टू मेक लॉज फॉर सोशल रिफॉर्म्स. राइट टू नहीं, इसमें ये नहीं. स्टेट्स राइट टू मेक लॉज फॉर सोशल रिफॉर्म्स. ठीक है. हाँ एक इसके रिस्ट्रिक्शन में आता है ये. ठीक है. सोशल रिफॉर्म्स के लिए लॉ बना सकता है गवर्नमेंट. देन राइट टू कन्वर्जन ऑफ रिलीजन ऑफ पीपल बाय रिलीजियस बॉडीज, दिस इज नॉट इन द राइट टू फ्रीडम. ठीक है. सो आंसर विल बी 1, 2 and 3 only.
Next, under which article of the Constitution wearing kirpans by Sikhs is deemed as a right to freedom? It is Article 25. Next है under Article 25. नहीं, 25 Article 25 refers to right freedom of religion. Then word Hindu in Article 25 does not include which of the following. So देखो उसमें क्या क्या include होते हैं. Sikhs are included, Jains are included, and Buddhists are also included. ठीक है. Who is not included? It is Parsis who are not included. ठीक है. तो ये आपको पता होना चाहिए. This is something very important. According to Article 25, Hindus shall be construed as including persons professing the religion of Sikh, Jain or Buddhists. ठीक है. Parsis are not included in this. ठीक है. तो अम्ब्रेला टर्म जैसे यूज़ करा है हिंदूज को आर्टिकल 25 में, एंड इट इंक्लूड्स बुद्धिस्ट, जैन्स एज वेल एज सिख्स. ठीक है. नेक्स्ट देखते हैं. अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन is not subjected to which of the following. Right to freedom of religion. ठीक है. तो किस किस से इसके लिए सब्जेक्टेड नहीं है? पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ, ह्यूमनिज्म एंड मोरालिटी. सो इट इज ह्यूमनिज्म. ठीक है. बाकी तीन आर मेंशन इन द आर्टिकल, है ना. यहाँ पे दिया है दीज राइट्स हैव सर्टेन लिमिटेशंस imposed on the grounds of public order, morality and health. ठीक है. Now, what are the restrictions in the freedom to manage religious affairs in Article 26 of the Constitution? तो हमें restrictions पे काफ़ी सवाल आते हैं, so you should be knowing them properly. तो क्या क्या restrictions हैं? Public order है, national security भी है, freedom to manage पूछा ना हम. फिर देखो public order रहता है, then national security भी होना तो चाहिए मेरे हिसाब से. ठीक है. Morality है. वेट, लेट मी जस्ट चेक द रियल, जहाँ से हमने पढ़ा था वहाँ पे चेक करने दो एक बार. तो यहाँ पे देखो मेंशन है आर्टिकल 26 के क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं. इट इज सब्जेक्ट टू पब्लिक हेल्थ, पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ. एंड इवन आर्टिकल 25 में भी दीज आर द 3 रिस्ट्रिक्शंस अलॉन्ग विद अदर फंडामेंटल राइट्स. ठीक है. सो दिस इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट. हमें पता ये 25 का भी दिया है ना रिस्ट्रिक्शंस. सो ये दिस इज़ समथिंग विच यू शुड बी नोइंग कि जो आर्टिकल 25 और 26 ये जो है इनमें क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस है. पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ. ठीक है. इसको लर्न कैसे करेंगे? PMH. बस ऐसे जैसे हम आपने पढ़ा होगा PMFIS करके एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है. ठीक है. तो वैसे उससे लर्न कर लो PMH. ठीक है. सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, यू शुड बी नोइंग दिस, है ना. बाकियों में देर आर नो रिस्ट्रिक्शंस एज सच. सो रिस्ट्रिक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट इवन फॉर आर्टिकल 19. दोज आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. आर्टिकल 19 में मैंने अच्छे से कराया था. ये रहे इनके क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस थे. एक तो जो आर्टिकल 19 क्लॉज ए जो था उसके लिए था सोवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट्स, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी और मोरालिटी, contempt of court, defamation and incitement to an offense. Incitement to an offense is also a restriction. ठीक है. उसके अलावा आर्टिकल 19 क्लॉज बी उसमें बस सोवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी और पब्लिक ऑर्डर है. ठीक है. उसके बाद जो आर्टिकल 19 क्लॉज सी, बी क्या है? पीसफुल असेंबली वाला, है ना. फिर आर्टिकल 19 क्लॉज सी में क्या क्या है? सोवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी, पब्लिक ऑर्डर एंड मोरालिटी. ठीक है. इसमें मोरालिटी भी आ गया फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन में. देन जो आर्टिकल डी 19 क्लॉज डी में क्या रिस्ट्रिक्शन है? इंटरेस्ट ऑफ द जनरल पब्लिक एंड द प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स. दिस इज फेयरली सिंपल टू रिमेंबर. जो ऊपर 3 वालों को हम लोग अच्छे से लर्न करने की कोशिश करते हैं. देखो ये 19 वाला जो है ये तो 19 क्लॉज डी वाला है. उसमें तो ऐसे पता चल रहा है कि मूवमेंट कहाँ पे रिस्ट्रिक्ट करेंगे, जहाँ पे डेंजरस है जाना. जैसे कोई आइलैंड्स होते हैं जहाँ पे एक
तो शेड्यूल ट्राइब्स का खुद का कल्चर्स वहाँ पे उनको सेव करना होता है ना. सो प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ दोज शेड्यूल ट्राइब्स. अपार्ट फ्रॉम दैट, it is dangerous for the general public to go to those islands. ठीक है, because either because of the wildlife present over there or because of the scheduled tribes also. काफ़ी सारे scheduled tribes वो हैं who do not know about the outer world and they become very hostile when they come in connection with the जो normal general public है. So for the safety of both the general public as well as the scheduled tribes, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट इज रिस्ट्रिक्टेड. ठीक है, तो वो तो सिंपली डन हो जाएगा. देन आर्टिकल 19 क्लॉज ई क्या था? फ्रीडम टू रिसाइड एंड सेटल. उसमें भी क्या है? इट इज़ द सेम रिस्ट्रिक्शंस आर एप्लीकेबल हियर ऑल्सो. इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक एंड प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स. तो ये कैसे होगा? क्योंकि वही सेम रीज़न है कि अगर डेंजरस है तो वहाँ किसी जनरल पब्लिक के लिए देन इट वोंट बी अलाउड. Plus in order to safeguard the rights of the scheduled tribes also. ठीक है. Then article 19 clause G is the freedom to perform any profession. ठीक है, उसमें क्या है रिस्ट्रिक्शन? उसमें है इंटरेस्ट ऑफ द जनरल पब्लिक. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. जनरल पब्लिक का इंटरेस्ट के विल बी द ग्राउंड्स फॉर रिस्ट्रिक्शन. ठीक है, इसको कैसे लर्न करेंगे? तो जो प्रोफेशन है वो उस अगर उससे कोई जनरल पब्लिक को नुकसान पहुंच रहा है देन इट वोंट बी अलाउड. फॉर एग्जांपल ऐसे टेररिज्म है ना. टेररिज्म को कोई लोग प्रोफेशन में बोल सकते हैं, या फिर ड्रग ट्रैफिकिंग मान लो, है ना. सो ये जो है ऑल ऑफ दिस विल नॉट बी इन द इंटरेस्ट ऑफ द जनरल पब्लिक, दैट इज़ वाई इट इज़ नॉट अलाउड. ठीक है, तो ये तीनों तो लर्न हो गए. ऊपर वालों का देख लेते हैं. देखो, जो ऊपर वालों में तीनों में कॉमन क्या है? एक तो सोवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया. सोवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया इज कॉमन टू ऑल, है ना. अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव पब्लिक ऑर्डर. पब्लिक ऑर्डर भी तीनों में कॉमन है. ठीक है, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में भी सोवरेनिटी, इंटेग्रिटी और पब्लिक ऑर्डर है. पीसफुल असेंबली में भी सोवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी एंड पब्लिक ऑर्डर. एंड फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन में भी है. फिर फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशंस में एक और है, दैट इज़ मोरालिटी. मतलब आप ऐसे सोचो कि कोई इमोरल सा गलत सलत काम करने वाला एसोसिएशन बना रहा है, तो जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं दे कैन बी कंसिडर्ड टू बी अ फॉर्म ऑफ एसोसिएशन, है ना. बट दे आर नॉट अलाउड बिकॉज दे आर इमोरल. ठीक है, तो वैसे करके लर्न कर सकते हैं. एंड इन फैक्ट दे आर इन्फ्रिंजिंग अपॉन द सोवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया एज वेल. ठीक है, तो यहाँ पे भी अलाउड नहीं है. उसके अलावा जो बाकी रिस्ट्रिक्शंस हैं दैट इज़ वो सारे ए में प्रेजेंट है ना. उसमें क्या क्या है? एक तो सिक्योरिटी ऑफ स्टेट भी प्रेजेंट है. देन फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन कंट्रीज प्रेजेंट है, फॉरेन स्टेट्स. फिर पब्लिक ऑर्डर तो था ही, हमने देख लिया था. डिसेंसी, मोरालिटी. अच्छा, मोरालिटी यहाँ पे भी प्रेजेंट है. ठीक है. देन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इज प्रेजेंट. ठीक है, डिफमेशन इज प्रेजेंट हियर. देन इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस इज ऑल्सो प्रेजेंट हियर. ठीक है, सो दिस इज समथिंग विच यू शुड रिमेंबर. जो सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं 19 में है मेजर रिस्ट्रिक्शंस, और आर्टिकल 25 एंड 26 में है ना. 25 में वही 25-26 में PMH करके हमने लर्न करा था, पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ. ठीक है, सो दीज आर एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट. ठीक है, तो अभी ये वाला क्वेश्चन देखते हैं. व्हाट आर द रिस्ट्रिक्शंस इन द फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स. तो हमें पता है PMH, दैट इज पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ. सो आंसर विल बी ऑप्शन डी. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड. आर्टिकल 23 प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन एंड फोर्स लेबर, दिस इज करेक्ट. प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये भी सही है. 26 फ्रीडम टू मैनेज, ये भी सही है. आर्टिकल 29 फ्रीडम ऑफ इस्टेब्लिशमेंट ऑफ, ये नहीं, ये सही नहीं है. आर्टिकल 30 है ये. ठीक है, फ्रीडम ऑफ इस्टेब्लिशमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बाय माइनॉरिटीज, दिस इज आर्टिकल 30. एंड आर्टिकल 29 क्या है? राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़ हैं वो. ठीक है, राइट ऑफ माइनॉरिटी टू प्रिजर्व देयर कल्चर और लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट.
ठीक है, दैट कम्स इन अंडर आर्टिकल 29। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड? प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन, दिस इज करेक्ट। प्रोटेक्शन, ये वही सेम क्वेश्चन रिपीटेड है। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन protects the right of minorities to establish and administer educational institutions of their own choices. So this comes under Article 30. Okay. Now, under which of the following articles it has been provided that all minorities, same question, Article 30 रहेगा आंसर. Then assertion and reasoning question दिया है एक. Assertion है कि Article 30 of the Constitution does not define the term minorities. This is correct. Then the Constitution recognizes only linguistic and religious minorities. So देखो, दो ये भी ट्रू है बट ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। ठीक है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसमें ओनली लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के बारे में ही मेंशन्ड है। देर आर नो अदर माइनॉरिटीज़ इंक्लूडेड। ठीक है, आई जस्ट शो यू द मेन स्टडी मटेरियल वेयर वी हैड रेड दिस। यहाँ पे मेंशन था जैसे आर्टिकल 30 है ना, राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, इसमें मेंशन है यहाँ पे क्लियरली कि दिस अप्लाइज ओनली टू रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़। तो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ कौन से लोग हो जाएंगे? वही क्रिश्चियन, सिख्स, ये सब लोग। और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ में दोज पर्सन हु स्पीक अ स्पेसिफिक लैंग्वेज, कोई माइनॉरिटी लैंग्वेज बोलते हैं, उन लोगों के लिए रहेगा। ठीक है, एनी अदर माइनॉरिटी इज़ नॉट इंक्लूडेड। Moreover, minority is not defined in the constitution as well. Second thing which you need to remember properly is that Article 29 में क्या क्या mentioned है? एक तो Article 29 will be applicable to both minorities as well as majority sections. Secondly, any उसमें minorities को कैसे define तो नहीं रेफर करा है कि any section of citizens having a distinct language, script and culture, those people will be having the right to conserve the same. ठीक है, तो ये मेंशन है आर्टिकल 29 में। ठीक है, तो दिस थिंग यू शुड बी नोइंग। ठीक है, सो द आंसर फॉर दिस विल बी ऑप्शन बी, बिकॉज even though the statement, both the statements given here are correct, but reason जो दिया है does not explain the assertion. ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। हाँ, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिकग्नाइजेज रिलीजियस माइनॉरिटीज, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, ये है आंसर। ठीक है, एथनिक माइनॉरिटीज आर नॉट रिकग्नाइज्ड अंडर आर्टिकल 30। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज गिवन द पावर टू enforce fundamental rights by the constitution? So all courts in India, which of the following are given the rights to enforce fundamental rights? तो it is the parliament, नहीं नहीं रुको, ठीक है, ये आर्टिकल 32 की बात कर रहे हैं। वैसे तो इट इज़ द पार्लियामेंट हु विल बी इनैक्टिंग लॉज विच विल इन्फोर्स द फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, सो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, बट अगर कोई हमारा फंडामेंटल राइट कॉन्ट्रवीन हुआ है and then we want to we want a remedy for that, in that case we will be going to the Supreme Court or the High Courts. ठीक है, so that thing you should be remembering. ठीक है, नेक्स्ट है द गार्डियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स इज द जुडिशरी। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट किसके अंडर? द रिट जुरिस्डिक्शन, दैट इज आर्टिकल 32 फॉर सुप्रीम कोर्ट एंड आर्टिकल 226 फॉर द हाई कोर्ट्स। ठीक है, इसको रिट जुरिस्डिक्शन बोलते हैं, रिट जुरिस्डिक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन हु इज द गार्डियन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स? सेम चीज़ पूछिए, इट इज़ द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हु इज कंसिडर एज द गार्डियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स? अगेन द जुडिशरी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिगार्डेड एज अ प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स? फिर से सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, now which of the following statements is not correct? K.M. Munshi was one of the members of the drafting committee of the constitution. हमें not correct बताना है,
सो दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट. ठीक है. The Constitution of India was adopted by the Constituent Assembly. This is correct. Panchayati Raj was recommended by the Balwant Rai Mehta Committee report. Again, this is also correct. President of India is the guardian of fundamental rights under the Constitution. So it is the Supreme Court of India who is the guardian. Okay. So option D will be incorrect here. Next, which of the following rights can be enforced under Article 32 of the Indian Constitution? So आर्टिकल 32 दैट इज सुप्रीम कोर्ट का रिट ज्यूरिस्डिक्शन, उसमें ओनली फंडामेंटल राइट्स आर इंक्लूडेड. ठीक है. वेर एज आर्टिकल 226 जो है हाई कोर्ट्स का रिट ज्यूरिस्डिक्शन, उसके अंदर all of these constitutional rights, statutory rights and fundamental rights, all of these are included in it. Okay, so this is an important distinction between the two. Now, which of the following articles is called the heart and soul of Indian Constitution? So, heart and soul क्या है Indian Constitution का? It is Article 32 and it was called so by Dr. B.R. Ambedkar. ठीक है. Next है which one of the following same question? It is right to constitutional remedies. ठीक है. Next, consider the following statements. This is an assertion and reasoning question. Dr. Ambedkar had described Article 32 of the Constitution as the very soul of it. And reason क्या है? Article 32 provides an effective remedy against the violation of fundamental rights. ठीक है. So 32 है soul of the Constitution. This is correct and this is also correct. So both A and R are true and the reason is the correct explanation of the assertion. Next, consider the following statements concerning the powers of the Supreme Court to issue certain writs to stop the violation of fundamental rights. The Supreme Court has powers to issue writs like habeas corpus, mandamus, certiorari, ये सब है ना. So this is correct. ठीक है. Then next क्या दिया है? Parliament may by law empower any other court to exercise within its jurisdiction the powers given to Supreme Court. This is also correct. And this is very important that you should remember this case. Parliament can also give powers to someone else, to some other court apart from the High Court, to exercise powers given to the Supreme Court under Article 32. Okay, so this is extremely important and it is also correct. So the correct answer for this will be both 1 and 2. Okay. Under which of the following articles of the Constitution of India, Supreme Court is empowered to issue different writs for the enforcement of fundamental rights? तो writ jurisdiction वही 32. ठीक है. Now, which one of the following writs is regarded as the greatest safeguard for the liberty of a person? Liberty of the person के लिए सबसे बड़ा safeguard is habeas corpus. ठीक है. तो ये इलीगल डिटेंशन को प्रिवेंट करता है. किसी भी पर्सन को इलीगली डिटेन करा है किसी ने, that can be prevented with the help of habeas corpus. ठीक है. नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिट्स कैन बी इशूड बाय द हाई कोर्ट टू सिक्योर लिबर्टी ऑफ द इंडिविजुअल? सो अगेन लिबर्टी ऑफ द इंडिविजुअल के लिए habeas corpus रहेगा. देन द रिट विच मे बी फाइल्ड फॉर प्रोटेक्शन ऑफ राइट टू पर्सनल फ्रीडम इज विच ऑफ द फॉलोइंग? सो प्रोटेक्शन ऑफ राइट टू पर्सनल फ्रीडम के लिए क्या रहेगा? अगेन habeas corpus. ठीक है. फिर है मैच द फॉलोइंग. सो दिस इज़ वेरी सिंपल. देखो habeas corpus हमको पता है इट मीन्स लेट अस हैव द बॉडी. ठीक है. मैंडमस मतलब वी कमांड. ठीक है. फिर है प्रोहिबिशन. प्रोहिबिशन का कहाँ है? इट इज़ अ रिट टू सबॉर्डिनेट कंट्रोल, सबॉर्डिनेट कोर्ट्स. ठीक है. इवन जो सर्ट्योरारी है दैट इज़ ऑल्सो रिट टू सबॉर्डिनेट कोर्ट्स, बट उसमें रहेगा कि जो सबॉर्डिनेट कोर्ट का जो वो लोग डिसीजन दे रहे हैं दैट विल बी बार्ड एंड इट विल बी ट्रांसफर टू द सुप्रीम कोर्ट और द हाई कोर्ट, हु एवर इज इशूइंग द रिट. ठीक है. तो प्रोहिबिशन रहेगा इट विल बी अ रिट टू सबॉर्डिनेट कोर्ट्स एंड सर्ट्योरारी रहेगा बी मोर फुली इन्फॉर्म्ड. देन को वारंटो इज बाय विच अथॉरिटी. ठीक है. सो अकॉर्डिंग टू व्हाट आई हैव मैच्ड द आंसर शुड बी सी. नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? सो सिमिलर क्वेश्चन है. इसमें क्या? प्रोहिबिशन. प्रोहिबिशन टू बी सर्टिफाइड नहीं होता है ना, दैट इज रॉन्ग. सर्ट्योरारी होता है टू बी सर्टिफाइड. ठीक है.
इसमें भी यहाँ पे भी सर्टियोरारी को या तो बी मोर फुली इन्फॉर्म्ड रहेगा या इट विल बी टू बी सर्टिफाइड। ठीक है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज इज नोन एज पोस्टमार्टम। सो पोस्टमार्टम किसको बोलते हैं? इट इज सर्टियोरारी। ठीक है, बिकॉज इन सर्टियोरारी द सुप्रीम कोर्ट और द हाई कोर्ट क्या करते हैं, दे री एग्जामिन द डिसीजन गिवन बाय अ सबॉर्डिनेट कोर्ट, और फिर वो बोलते हैं कि वेदर और नॉट इट इज़ लीगल। नहीं नहीं, ये गलत हो गया। ठीक है, बस इतना ही करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट अदर थिंग डू दे डू इन सर्टियोरारी, दे मे आस्क द सबॉर्डिनेट कोर्ट टू ट्रांसफर जो भी पटिशन है टू देमसेल्व्स। ठीक है, ये भी कर सकते हैं सर्टियोरारी में। ठीक है, बाकी को वारंटो वगैरह का तो पता ही होगा आपको, है ना। नेक्स्ट है इन विच पटिशन जुडिशरी ऑफ ऑर्डर्स द एग्जीक्यूटिव्स टू परफॉर्म देयर ड्यूटीज। सो इट इज अंडर द वो mandamus we command. Again, this is simple. Then, when the Supreme Court issues a writ to a person or to an institution to perform its duty, it is called which of the following? Perform its duty मतलब mandamus. नेक्स्ट है वी हैव टू करेक्टली मैच द फॉलोइंग। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स कहाँ पे है हमारे? आर्टिकल 29 एंड 30। ठीक है। देन राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज इज आर्टिकल 32। Then we have right against exploitation. So that comes under Article 23 and 24. Then right to equality comes under Article 14 to 18. ठीक है. Next we'll look at the other acts. We have to match the following. Match list 1 with list 2 and select the correct answer using the code given below. ठीक है. So article number दिया है और एक्सप्लेनेशन दिया है, तो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं पहले। नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज प्रॉपर्टी सेव बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ। सो दिस कम्स अंडर आर्टिकल 31। ठीक है, हाउ एवर इट हैज़ बीन, नहीं नहीं नहीं, अच्छा ये है वो डिप्राइव्ड ऑफ हिज प्रॉपर्टी सेव बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ, है ना, ये उसमें नहीं आएगा। ये वी हैड रेड अबाउट दिस अर्लियर ऑल्सो, आई जस्ट शो इट टू यू, वेट अ सेकेंड। देखो वी नीड टू नो द डिफरेंस बिटवीन, एक तो आर्टिकल 31, आर्टिकल 31 तो पूरा ही राइट टू प्रॉपर्टी था। ठीक है, एंड इट हैज़ बीन रिपील्ड। तो उसमें वही था कि नो पर्सन कैन गेट, मतलब किसी और का प्रॉपर्टी कैन नॉट बी टेकन विदाउट एनी प्रॉपर लॉ। ठीक है, दैट वाज अ पार्ट ऑफ आर्टिकल 31 एंड दैट हैज़ बीन रिमूव्ड। ठीक है, नाउ अभी एक और आपको पता होना चाहिए, दैट इज आर्टिकल 30 क्लॉज 1A। इसमें क्या है? राइट टू गेट एडिक्वेट कॉम्पनसेशन इफ प्रॉपर्टी इज एक्वायर्ड बाय द स्टेट। ठीक है, सो ये भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, बट इसमें क्या है, अगर प्रॉपर्टी को अक्वायर कर लिया है स्टेट ने, देन द पर्सन विल हैव द राइट टू कॉम्पनसेशन। ठीक है, सो दीज टू आर डिफरेंट एंड ये हमें अच्छे से पता होना चाहिए कि आर्टिकल 30 दैट इज़ वो एजुकेशन का जो राइट्स है ना माइनॉरिटीज़ की, उसी में क्लॉज 1 है वो इससे रिलेटेड है, कॉम्पनसेशन ऑफ प्रॉपर्टी, वेयर एज आर्टिकल 31 इज रिलेटेड टू राइट टू प्रॉपर्टी इन, मतलब अलग से है बिल्कुल। ठीक है, तो अभी फिर से एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या था स्टेटमेंट था, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज प्रॉपर्टी सेव बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ। सो दिस विल बी इन आर्टिकल 31, है ना, तो वो मैंने सही बोला था। वेर एज हम अभी क्या देख के आए, एक आर्टिकल 30 क्लॉज 1A है, उसमें क्या दिया है, राइट टू कॉम्पनसेशन इन केस द प्रॉपर्टी इज एक्वायर्ड बाय द स्टेट। ठीक है, सो दीज टू द डिफरेंस यू शुड बी नोइंग प्रॉपरली। ठीक है, उसके बाद नो पर्सन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट इन द मैटर ऑफ पब्लिक अपॉइंटमेंट ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रेस रिलीजन और कास्ट। ये कहाँ पे दिया है? दिस इज इन आर्टिकल 16। ठीक है, और उसका क्लॉज भी क्या, क्लॉज 2। ठीक है, क्लॉज 1 क्लॉज 2 दोनों में सिमिलर चीज़ मैंशनड है। देन ऑल माइनॉरिटीज़ वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन और लैंग्वेज shall have the right to establish and administer educational institutions of their choice. This will be in Article 30. ठीक है, देन नेक्स्ट है no citizen shall be denied admission into any educational institution
maintained by the state or receiving state aid on the grounds of religion, race, caste, language or any of them. ये भी आर्टिकल 30 का ही पार्ट है. रुको रुको एक सेकेंड. अच्छा, दिस इज इन आर्टिकल 29 आई थिंक. लेट मी चेक फ्रॉम द ओरिजिनल मटेरियल. वन सेकेंड. इसमें जैसे दिया है आर्टिकल 29 क्लॉज 2. सो आर्टिकल 29 हमें पता है कि इट इज़ द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट्स ऑफ माइनॉरिटीज़, है ना. और उन्होंने डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर अपना वो लोग प्रिजर्व कर सकते हैं. एंड इट अप्लाइज बोथ टू माइनॉरिटी एंड मेजॉरिटी सेक्शंस एज वेल. ठीक है. अभी उसी का आर्टिकल 29 का ही क्लॉज 2 क्या है. इट इज़ रिगार्डिंग that no citizen shall be denied admission into state maintained institutions or state aided institutions on grounds of religion, race, caste or language. So again this is very important. ठीक है. RRCL, ये हमें लगेगा कि ये शायद वो ऐसा वाला, दिस माइट बी समवेयर इन राइट टू इक्वालिटी. तो आर्टिकल या तो 15 में होगा या 16 में होगा, ऐसे देख के लग सकता है. बट नहीं, दिस कम्स अंडर आर्टिकल 29 क्लॉज 2. ठीक है. ये आर्टिकल 15 जैसी चीज़ लग रही है, बट इसमें देखना क्या है. रिलीजन, रेस, कास्ट और लैंग्वेज, दीज आर द क्राइटेरियाज, है ना. RRCL क्राइटेरिया है. वेराज आर्टिकल 15 में क्या क्राइटेरिया था. इट वॉज रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ. ठीक है. सो दिस इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट. ट्राई टू रिमेंबर दिस प्रॉपरली. कि जो 29 माइनॉरिटी राइट्स हैं उसमें ये भी एक राइट है कि नो सिटीजन शैल बी डिनाइड एडमिशन इनटू स्टेट मेंटेन इंस्टीट्यूशंस और स्टेट एडेड इंस्टीट्यूशंस ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट और लैंग्वेज. ठीक है. सो दिस इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट. तो इसका क्या रहेगा. आर्टिकल 29 क्लॉज 2. ठीक है. So according to this, the correct answer should be option A. This was a good question, I think. Quite a nice question. ठीक है. UPSC का ही है ये. ठीक है. नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड. अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ये सही है. फिर प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, दिस इज ऑल्सो करेक्ट. अच्छा रुको. अरेस्ट एंड डिटेंशन, दिस इज आर्टिकल 22. 23 इज वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग वाला. ठीक है. फ्रीडम ऑफ रिलीजन सही है, ये भी सही है. ठीक है. सो आंसर विल बी ऑप्शन बी. नेक्स्ट देखते हैं. मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन. अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स किस में मेंशनड है. ठीक है. सो अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स इज आर्टिकल 18. देन फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, दिस कम्स अंडर आर्टिकल मैनेज में 26 आता है. ठीक है. देन प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज ऑफ माइनॉरिटीज, दिस इज आर्टिकल 29. ठीक है. देन राइट टू एजुकेशन 21A. ठीक है. नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग लिस्ट. सो फर्स्ट है फंडामेंटल ड्यूटीज, वी हैव टू मैच देम विद द रिस्पेक्टिव कुछ भी, या तो आर्टिकल, अमेंडमेंट या केस. ठीक है. तो सबसे पहले फंडामेंटल ड्यूटीज, इसके बारे में वेयर वॉज इट मैंशनड. इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द स्वर्ण सिंह कमेटी. ठीक है. सो इसका रहेगा ए का 3. ठीक है. नेक्स्ट देखते हैं, पार्लियामेंट कैन अमेंड फंडामेंटल राइट्स. सो दिस वाज सेड इन केशव नंदा भारती केस. हाउएवर, हाँ ये वैसे दोनों चीज़ें सिमिलर रहेंगी इसमें. देखो क्या रहेगा. केशव नंदा भारती केस में बोला था कि दे कैन अमेंड द फंडामेंटल राइट्स. हाउएवर दे हैड आल्सो सेड दैट द बेसिक स्ट्रक्चर शुड नॉट बी चेंज. तो बेसिक स्ट्रक्चर को वैसे ज़्यादा कनेक्ट करते हैं केशव नंदा भारती केस से, तो यहाँ पे हम बेसिक स्ट्रक्चर में केशव नंदा भारती केस लगा देते हैं. ठीक है. यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, देखो मिनर्वा मिल्स केस में क्या इन्होंने क्या किया है. दे हैव सेड ए का 3 है, देन बी का 4 रखा है. ठीक है. एज आई टोल्ड यू, जो केशव नंदा भारती केस है वो दोनों के लिए एप्लीकेबल रहेगा वैसे तो. और जो मिनर्वा मिल्स केस है, मिनर्वा मिल्स केस में क्या किया था, डीपीएसपी एंड
जो फंडामेंटल राइट्स है इसके बीच में देयर वाज अ बैलेंस, मतलब उन्होंने बोला था कि अ बैलेंस शुड बी मेंटेन बिटवीन दीज टू। अपार्ट फ्रॉम दैट इट हैड ऑल्सो टॉक्ड अबाउट द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो अगर इस केस में हम लोग सी पे 1 लगा सकते हैं। ठीक है, बिकॉज जो पार्लियामेंट कैन अमेंड फंडामेंटल राइट्स ये ओनली केशव नंदा भारती केस में बोला था, वेराज केशव नंदा भारती केस में बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्रिन भी दिया था, वेराज मिनर्वा मिल्स केस में ये पार्लियामेंट कैन अमेंड फंडामेंटल राइट्स ऐसा कुछ नहीं बोला था। ठीक है, सो दैट इज वाई आई हैव डन सो। ठीक है, देन प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स ये आता है आर्टिकल 23 में। ठीक है, सो दिस वाज अ फेयरली सिंपल क्वेश्चन, बस यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था ये पोर्शन में। ठीक है, सो वी हैव सीन दैट। नेक्स्ट देखते हैं, which of the following statements are incorrect? So part 3 of fundamental rights of the constitution is based upon bill of rights of the USA, so this is correct। ठीक है, हमें incorrect बताना है। Right to die is a fundamental right under article 21 of the constitution, this is correct। देखो right to die तो नहीं है exactly, उसको बोल सकते हैं कि आर्टिकल 21 दिस इज करेक्ट। वैसे तो देखो लेट मी चेक वंस, एक सेकेंड। तो इसमें देखो यहाँ दिया है राइट टू डाई विद डिग्निटी इज अ पार्ट ऑफ द सब्सटेंटिव राइट्स, सब्सटेंशियल जो भी होता है सब्सटेंटिव राइट्स विच आर मैंडेटेड या प्रोवाइडेड अंडर द राइट टू लाइफ। ठीक है, ये रहा राइट टू डाई विद डिग्निटी, उसी में वो पैसिव यूथनेशिया, लिविंग विल, ये सारे कंसेप्ट्स आते हैं। तो ये जो सब्सटेंटिव राइट्स है ना अंडर आर्टिकल 21, उसके अंडर आता है राइट टू डाई विद डिग्निटी। सिमिलरली जो जो आर्टिकल 21 है उसमें एक तो सब्सटेंटिव राइट्स होते हैं, एक होते हैं प्रोसीजरल और क्रिमिनल जस्टिस राइट्स। सो अंडर द सब्सटेंटिव राइट्स राइट टू डिग्निटी इज प्रेजेंट। ठीक है, so this thing should be correct according to me कि right to die is a fundamental right under article 21। ठीक है, तो हमने देख लिया that is correct। फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ कंप्लीट फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन गलत दिया है। ठीक है, इट्स क्वासी फेडरल है ना। और फंडामेंटल राइट्स कैन बी रिमूव्ड अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सो अगेन दे कैन बी रिमूव्ड, बट जैसे अभी हमारा एक वो राइट टू प्रॉपर्टी हटा दी थी, हाउएवर बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन शुड नॉट बी अफेक्टेड। ठीक है, तो हमें बता ये इन्होंने गलत आंसर दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, सो इसमें इनकरेक्ट बस यही वाला है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज कम्प्लीटली फेडरल, इज अ कंप्लीट फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, दिस इज अ रॉन्ग आंसर विच हैज बीन गिवन हियर। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स कैन बी रिमूव्ड, यू माइट बी नोइंग कि इवन जो आर्टिकल 31 है right to property it has already been removed। ठीक है, it can be removed, just that the basic structure of the constitution should not be um, it should not be affected। ठीक है, नेक्स्ट है इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, यहाँ पे ऐसे लिखा तो है कि फंडामेंटल राइट्स कैन बी अमेंडेड बट नॉट रिमूव्ड, पर रिपील तो कर सकते हैं जहाँ तक मेरे को पता है। ठीक है, सो दिस इज अ डाउटफुल क्वेश्चन है ना। इसको मैं वैसे हाईलाइट कर लेती हूँ, विल जस्ट चेक इट आफ्टरवर्ड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस डिड सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया डिक्लेयर द प्रेवलेंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स ओवर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी इन द केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द टू। तो फंडामेंटल राइट्स को प्रेसिडेंस किस में मिली थी इन केसेस में से? सो इट वाज द चंपाकम दोराई राजन केस wherein fundamental rights were given precedence over the TPSPs। ठीक है, दिस इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे मेंशन है इन द स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपकम राजन केस द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हेल्ड दैट in case of a conflict between those two fundamental rights shall prevail over the TPSPs। ठीक है, तो यही है इसमें दिया है। एंड आफ्टर दिस case the first amendment act was brought in। ठीक है,
यहाँ पे मेंशन होगा कहीं पे, ये रहा. To remove the effect of this decision, the first constitutional amendment was brought in, and under that there were some restrict clause 4 ऐड कर दिया था आर्टिकल 15 में, कि जो सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस होते हैं उनके लिए देयर कैन बी स्पेशल प्रोविजंस. ठीक है, सो इतना ही दिया था उसमें. नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. बाय विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस पार्लियामेंट गॉट द राइट टू अमेंड फंडामेंटल राइट्स. सो इट वाज द केशव नंदा भारती केस, है ना, under which they got the permission to amend fundamental rights. However, उसमें था कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन शुड नॉट बी अफेक्टेड. ठीक है, नेक्स्ट है क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग केसेस हमें बताना है. देखो, सबसे पहले बताऊँ क्या हुआ था. सबसे पहले शंकरी प्रसाद केस, दिस इज करेक्टली अरेंज्ड. शंकरी प्रसाद केस, फिर सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, फिर गोलकनाथ, एंड देन केशव नंदा भारती केस. ठीक है, सो दिस इज करेक्टली अरेंज्ड. इनके बारे में देख लेते हैं. देखो, जो सबसे पहले है शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, 1951 में हुआ था ये. एंड 1965 में सज्जन सिंह केस हुआ था. ठीक है, इन दोनों में इट वाज हेल्ड दैट द पार्लियामेंट कैन अमेंड द फंडामेंटल राइट्स गिवन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, इसके बाद में 1967 में गोलकनाथ केस हुआ था. उसके अंडर इट वाज सेड दैट नो, द सुप्रीम कोर्ट had held that no, the fundamental rights cannot be amended. ठीक है, फिर देन केम द केशव नंदा भारती केस. उसमें दे सेड दैट इट कैन बी अमेंडेड, हाउएवर द बेसिक स्ट्रक्चर शुड नॉट बी अफेक्टेड. ठीक है, बस इतना ही है. तो पहले दो केसेस जो है शंकरी प्रसाद एंड सज्जन सिंह केस, उसमें बोल दिया था कि दे कैन अमेंड फंडामेंटल राइट्स. ठीक है, फिर गोलकनाथ केस में बोला था कि दे कैन नॉट अमेंड फंडामेंटल राइट्स. और लास्ट में केशव नंदा भारती केस में बोला था कि इट कैन बी अमेंडेड बट बेसिक स्ट्रक्चर शुड बी केप्ट इन माइंड. ठीक है, बस इतना ही है इसमें. तो इसमें लर्न भी कर लो आप, जैसे शंकरी प्रसाद केस और सज्जन सिंह केस. हाउ विल यू रिमेंबर दैट इन्होंने बोला था कि अमेंड करना है. देखो, शुरू से बोलते आ रहे हैं कि अमेंड कर सकते हैं. ठीक है, रिमेंबर दिस, कि इन ऑल द केसेस इट हैज़ बीन सेड दैट फंडामेंटल राइट्स कैन बी अमेंडेड. ठीक है, एक्सेप्ट द गोलकनाथ केस. सो गोलकनाथ केस इज़ एन एबरेशन. बस इसी में अलग चीज़ बोली थी उन्होंने कि नहीं कर सकते हैं अमेंड. बाकी सब केसेस में उन्होंने बोला कि इट कैन बी अमेंडेड. इवन इन द केशव नंदा भारती केस इट हैज़ बीन सेड दैट इट कैन बी अमेंडेड, हाउएवर देयर इज़ अ कंडीशन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर. ठीक है, तो आपको बस गोलकनाथ केस का ही लर्न करना है कि उसमें बोला था कि इट कैन नॉट बी अमेंडेड. ठीक है, और ऐसे लर्न कर लो कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जाओ, आप नहीं कर सकते अमेंड, गो अवे, यू कैन नॉट अमेंड द फंडामेंटल राइट्स. ठीक है, दैट वे यू कैन रिमेंबर दिस. ठीक है, नेक्स्ट है द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज़ प्रोपाउंडेड द. अच्छा, इसको पूरे को मैं हाईलाइट कर लेती हूँ, दिस इज इम्पोर्टेंट. हाँ, नाउ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया had has propounded the doctrine of basic structure in which of the following cases. So Keshav Nanda Bharti case. ठीक है, which one of the following cases outlined the basic structure. Again वही आएगा. फिर select the correct chronological order of the following judgments dealing with fundamental rights. तो अगेन वही सवाल है. देखो, गोलकनाथ केस पहले हुआ था केशव नंदा भारती से. गोलकनाथ का ईयर वॉज 1960 आई थिंक, 1967. हाँ ठीक है, 1967. फिर केशव नंदा भारती केस 1973. निनरवा मिल्स शायद 1978 या 80, हाँ 1980 में हुआ था ये. ठीक है, और फिर ए के गोपालन केस सबसे अर्ली केस है. इट वाज इन 1950.
ठीक है। सो इसका वही देख लेते हैं हम लोग। वील हैव टू रिमेम्बर दिस। सो देखो, ए के गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास क्या हुआ था 1950 में। और इसमें इसको मैं लर्न भी करा देती हूँ, इसके अंडर क्या बोला था। दिस वाज कंसिडर्ड टू बी अ अबेरेशन, मतलब इसको खराब मानते हैं ये वाले केस को, बिकॉज इसमें बोला था कि फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें बहुत सारे फालतू, रुको एक सेकेंड, आई जस्ट टेल यू व्हाट वाज रॉन्ग विद दिस। हाँ, दे हैड डन अ वेरी नैरो इंटरप्रिटेशन ऑफ आर्टिकल 19 एंड 21। ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट उन्होंने बोल दिया था कि जो डिटेंशन होती है किसी भी पर्सन की, दैट इज़ लीगल। मतलब अगर अगर किसी लॉ के अंडर किसी को डिटेन कर रहे हैं, देन इट कैन नॉट बी चैलेंज्ड इन द कोर्ट। ठीक है, ऐसे बोल दिया था। सो दिस वाज रॉन्ग। ठीक है, बाद में जाके इसको इम्प्रूव करा, बट यहाँ पे प्राइमरली ये चीज़ बोली थी कि किसी को डिटेन करा है ना अगर, if it is done by law, it is done under some act or law, then it is legal, so you cannot approach the court। तो ये फिर बाद में जो केसेस थे उसमें दिस वाज डिनाइड। ठीक है, दिस वाज वन ऑफ द मेजर थिंग रिलेटेड टू द ए के गोपालन केस। और मेनका गांधी केस जो 1978 में हुआ था, उसमें दिस जजमेंट वाज ओवरटर्न्ड। ठीक है। और इसमें वही प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ को उन्होंने बोला था कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कुछ नहीं होगा, नो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ओनली प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। ठीक है। और फिर बाद में मेनका गांधी केस ऑफ 1978, उसमें बोल दिया था कि बोथ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ एंड प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ बोथ आर components of our fundamental rights। ठीक है। तो ये हो गया गोलकनाथ केस। मैंने बता ही दिया था अभी आपको कि गोलकनाथ केस वाज रिलेटेड टू वेदर फंडामेंटल राइट्स कैन बी अमेंडेड और नॉट। तो उन्होंने बोला था गोलकनाथ केस में कि दे कैन नॉट बी अमेंडेड। ठीक है। गोलक ये यहाँ पे बाकी केसेस में ये बोला था कि दे कैन बी अमेंडेड, वेराज गोलकनाथ केस में बोला था कि दे कैन नॉट बी अमेंडेड। ठीक है। फिर है केशव नंदा भारती केस, तो पता ही हमको है ना, वो बेसिक स्ट्रक्चर। और मिनर्वा मिल्स केस में क्या हुआ था, अ बैलेंस बिटवीन द डीपीएसपीज एंड फंडामेंटल राइट्स वाज एस्टैब्लिश्ड। ठीक है। मोर ओवर जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है उसको रीआइट्रेट किया था इसके अंदर। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज द पोजीशन ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी इन इंडिया। सो राइट टू प्रॉपर्टी इन इंडिया इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, पहले था। राइट नाउ इट इज़ अ लीगल राइट विच इज़ अवेलेबल टू एनी पर्सन। ठीक है। सो इवन फॉरेनर्स कैन बाय लैंड इन इंडिया। ऐसे ही आप देख लो, यहाँ इन दोनों में कंफ्यूज होने का देर आर चांसेस, बट इफ यू थिंक लॉजिकली, तो आपको पता है कि एम्बेसीज वगैरह के पास भी लैंड होती है और फॉरेन कंपनीज होती हैं। ठीक है, जो एफडीआई वगैरह के थ्रू दे ऑल्सो एक्वायर लैंड एंड प्रॉपर्टी। ठीक है। सो this is a legal right available to any person। Now, next question, right to property belongs to which category among the following? Legal right, fundamental right, natural right or human right? So it is a legal right। ठीक है, आर्टिकल 300 एंड 300 ए में है। राइट टू प्रॉपर्टी इज अ, अगेन सेम क्वेश्चन, स्टैट्यूटरी राइट नहीं है, लीगल राइट है। ठीक है। फिर read the following statements and choose the correct option। Right to property was deleted from the list of fundamental rights by the 44th Constitutional Amendment Act। So this is correct। ठीक है। Then right to property was made a legal right under Article 300A in Part 12 of the Constitution। This is also correct। ठीक है। So both statements here given here are correct। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं,
At present the right to property under Constitution of India is, हाँ फिर से सेम क्वेश्चन पूछा है, लीगल राइट रहेगा। फिर नेक्स्ट है आर्टिकल 301 इज रिलेटेड टू राइट टू प्रॉपर्टी, गलत, इट इज 300A। ठीक है। फिर है राइट टू प्रॉपर्टी इज अ लीगल राइट बट नॉट अ फंडामेंटल राइट, दिस इज करेक्ट। आर्टिकल 300A was inserted in Indian Constitution by the 44th Amendment during the period of Congress government। कांग्रेस गवर्नमेंट नहीं थी 44th Amendment Act में, it was जनता पार्टी गवर्नमेंट which was there। ठीक है। कांग्रेस तो पहले थे सॉरी इंदिरा गांधी जी के अंडर, हु हैड डिक्लेयर्ड इमरजेंसी, और फिर इमरजेंसी के बाद में द जनता पार्टी गवर्नमेंट हैड कम टू पावर एंड दे, फिर उन्होंने ठीक करा सब कुछ, जो इमरजेंसी में कुछ भी कर दिया था तो उसको ठीक करा था 44th अमेंडमेंट के थ्रू। ठीक है। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस शुड बी ओनली टू, ओनली सेकेंड स्टेटमेंट इज करेक्ट है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे ये दिया है, द अमेंडमेंट वॉज डन अंडर द जनता पार्टी गवर्नमेंट। ठीक है। नेक्स्ट है ये, in present times the right to property has been accepted in the Indian Constitution in which of the same question पूछा है, लीगल राइट है। फिर by which of the following right to property was omitted, it was 44th amendment। then when was the fundamental right to property abolished, it was in by the 44th amendment। नेक्स्ट है सेम क्वेश्चन, फिर से वही पूछते जा रहे हैं। ठीक है। फिर the 44th amendment removed which right, so again वही सेम क्वेश्चन, बार बार वही पूछा हुआ है। which one of the following is not a fundamental right, right to property, which one of the following is same question, right to property, not among the 6 fundamental rights, again right to property। Indian Constitution does not grant which of the following rights, it is राइट टू इक्वल शेल्टर, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, लिबर्टी है। राइट टू इक्वल शेल्टर नहीं है, राइट टू शेल्टर है। राइट टू शेल्टर इज अवेलेबल अंडर आर्टिकल 21 बट राइट टू इक्वल शेल्टर ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। सो द आंसर विल बी ऑप्शन ए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट ग्रांटेड बाय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट टू सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, राइट टू जेंडर इक्वालिटी। देखो ये तो है ना, हमें नॉट बताना है, ये है आता है आर्टिकल 19 में, है ना, क्लॉज ई में। देन राइट टू इन्फॉर्मेशन नहीं है, देखो राइट टू इन्फॉर्मेशन नहीं है। राइट टू इक्वालिटी तो है आर्टिकल 14 में, क्या बोला है 14 क्या, इनफैक्ट 15 में भी बोला है, देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। ठीक है। तो उसमें आ जाएगा जेंडर इक्वालिटी। राइट टू इन्फॉर्मेशन इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, it is a statutory right which was given under आर्टिकल नहीं, वो RTI एक्ट था 2005 का, उसके अंदर। ठीक है। सो दैट विल बी द आंसर फॉर दिस। ठीक है। However there was a decision of the Supreme Court, उसमें मतलब ऐसे एक्सप्लिसिटली नहीं मेंशन्ड है ये, बट एक सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था, उसमें बोला था कि राइट टू इन्फॉर्मेशन लाइज अंडर आर्टिकल 19(1) क्लॉज ए। ठीक है। हाउएवर इट इज़ नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। हमारा क्वेश्चन क्या था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या मेंशन है, तो ये मेंशन नहीं है। ठीक है। फिर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, नो वन कैन बी कंपेल्ड टू सिंग नेशनल एंथम सिंस इट विल बी अ violation of right to freedom of speech and expression, this is correct। then it will be violation of right to freedom of conscience and practice and propagation of religion, हाँ फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस के अगेंस्ट जा रहा है। ठीक है। फिर देर इज़ नो लीगल प्रोविजन obliging anyone to, this is also correct। ठीक है। तो उसी में सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन था बिजॉय इमानुअल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला में, द कोर्ट हैड held that expelling children based upon their conscientiously held belief was against the Constitution of India, and the court had said that no provision of law
obliges anyone to sing the national anthem. ठीक है, so this is very important. This entire case is quite important. Bijoy Emmanuel versus State of Kerala. Wait, let me check कि बस इसी के बारे में तो है ही. हम्म, बिजो- हाँ वही है. नेशनल एंथम रिफ्यूज करने के लिए था ये वाला केस, है ना. तो इसको लर्न कैसे करेंगे? बेजोय इमानुअल, बेजो, तुम बस कर लो इससे. बीजोस का जो बी है एंड बस का बी आर कॉमन. ठीक है, तो ऐसे लिंक कर लो कि बस हमें नहीं गाना नेशनल एंथम. ठीक है, सो इवन इफ समवन सेज दैट दे वांट डोंट वांट टू sing the national anthem, it is well within their rights. ठीक है, so they are not doing anything wrong. ठीक है, so the correct answer for this will be option C. नेक्स्ट देखते हैं. चूज, सो दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन यूपीएस बाय यूपीएससी. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल टू द सिटीजन्स, इंडियन सिटीजन्स बट नॉट टू इंडियन एलियंस, बट नॉट टू एलियंस. तो मैंने बताया था आपको कौन से राइट्स हैं. 15, 16, 19, 29, 30. दीज आर राइट्स विच आर अवेलेबल ओनली टू सिटीजन्स. ठीक है, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, हाँ ये वाला रहेगा. देन इक्वालिटी बिफोर लॉ, नहीं. आर्टिकल 14 इज अवेलेबल टू ऑल. फिर राइट ऑफ माइनॉरिटीज़, हाँ ये भी रहेगा 29 और 30. देन प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी 21, नहीं ये सब के लिए. ठीक है, सो आंसर विल बी 1 and 3 ओनली. नेक्स्ट देखते हैं. Fundamental rights provided by which of the following groups of articles are granted only to the citizens of India? So I just told you earlier also, ये 15, 16, 19, 29 भी आएगा इसमें, 29 also and 30. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. Which of the following fundamental rights is not available to foreign citizens? So फॉरेन सिटीजन, वही सेम क्वेश्चन फिर से पूछ लिया हमसे. 15, 16, 19, 29, 30 ऐसे करके हमने लर्न किया था. तो इनमें से कौन सा अवेलेबल नहीं है? पॉलिटी है, राइट टू फ्रीडम ये नहीं है. ठीक है, 19 नहीं है. बाकी 14, 21 और 23, 24 ये सब है. नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग राइट्स इज अवेलेबल टू ऑल पर्सन्स अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? सो इट इज़ द फर्स्ट वन, राइट टू इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, 14, आर्टिकल 14. ठीक है. देन विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स आर नॉट अवेलेबल टू ऑल पर्सन्स इन इंडिया? वही सेम क्वेश्चन पूछते जा रहे हैं. फिर इक्वालिटी बिफोर लॉ नॉट अवेलेबल टू ऑल पर्सन पूछा है ना, तो इसमें ये राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं अवेलेबल है, दैट इज़ 15. 14 तो है. फिर राइट टू मूव फ्रीली 19, ये भी अवेलेबल नहीं है उनको. ठीक है, राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन, अच्छा ये भी नहीं होता है वैसे तो अवेलेबल उनको, है ना. राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन इज ऑल्सो नॉट अवेलेबल टू देम. ठीक है, एंड राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन किस में आता है? वैसे ये लीगल राइट है शायद, एज फार एज आई नो. लीगल या, हाँ लीगल राइट रहेगा. ठीक है, राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन. लेट मी चेक फॉर आर राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन. हाँ, इट इज़ अ स्टैट्यूटरी राइट, नॉट अ फंडामेंटल राइट. ठीक है, दिस थिंग यू शुड बी रिमेम्बरिंग. ये वैसे जनरल नॉलेज के लिए है कि कहाँ गया. राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन, इट इज़ ओनली अ स्टैट्यूटरी राइट. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स कॉन्फर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज ऑल्सो अवेलेबल टू नॉन सिटीजन्स? नॉन सिटीजन्स के पास क्या क्या रहता है? कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है. फिर फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है उनके पास. फ्रीडम टू मूव एंड सेटल ये भी नहीं है उनके पास. देन ये हो जाएगा डी एंड ई. देन राइट
फ्रीडम टू अक्वायर प्रॉपर्टी ये भी नहीं है उनके पास, ठीक है। सो ऑल ऑफ दीज आर नॉट, दे डू नॉट हैव दीज, ओनली राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है, ठीक है। देन अ ब्रिटिश सिटीजन स्टेइंग इन इंडिया कैन नॉट क्लेम द राइट टू, वही सेम क्वेश्चन बार बार पूछ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड प्रोफेशन नहीं है उनके पास, हाँ दिस इज करेक्ट। इक्वालिटी बिफोर लॉ है, प्रोटेक्शन ऑफ ये भी 21 है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन है 25, ठीक है। क्या बस आपको बस 15, 16, 19, 29, 30 लर्न करना है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स इज नॉट एंजॉयड बाय अ ब्रिटिश सिटीजन, ये फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड प्रोफेशन नहीं है, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ब्रिटिश सिटीजन स्टेइंग इन इंडिया कैन नॉट क्लेम द राइट टू freedom of trade and profession. Then in India, if a religious community is given the status of a national minority, what special advantages is it entitled to? National minority अगर है किसी के पास status, then what all rights do they have? It can establish and administer exclusive educational institutions. This is correct. ठीक है. Then the President of India automatically nominates a representative of the community to Lok Sabha. This is not correct. ठीक है, ये ऐसा कुछ सिस्टम नहीं है। फिर इट कैन डिराइव बेनिफिट फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर्स 15 पॉइंट प्रोग्राम, हाँ इट कैन, कहीं पे भी कैन वाला आएगा ना कि हाँ इट कैन डू दैट, ठीक है। और 15 पॉइंट प्रोग्राम वॉज फॉर, आई थिंक इट वॉज फॉर माइनॉरिटीज ओनली, लेट मी चेक वंस। 15 पॉइंट प्रोग्राम, ये माइनॉरिटीज़ के लिए ही था, so they can draw benefits from this, ठीक है। Next question, bonded labor was abolished in India by an act of parliament which was enacted in the year, which year? So bonded labor के लिए 1975 में आया है, ठीक है। I did not know about this, 1976 का है ये। So there is the bonded labor system abolition bill of 1976, ठीक है। तो ये हमें पता होना चाहिए, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि बॉन्डेड लेबर बिल सिस्टम अबॉलिशन बिल कब का है, 1976 का है। एंड हाउ विल यू रिमेंबर दिस? देखो 1975 में देयर वाज इमरजेंसी, इमरजेंसी में काफ़ी फोर्सफुली सबसे काम करा रहे थे, है ना, बॉन्डेड लेबर टाइप काम हो रहा था, दैट इज़ वाई, ऐसे लर्न करने के लिए मैं बता रही हूँ ये आपको, ऐसे लिंक बना सकते हैं कुछ भी बना के, कि दैट इज़ वाई बॉन्डेड लेबर सिस्टम अबॉलिशन बिल वाज ब्रॉट इन 1976, ठीक है। 1975 ऐसे तो पता ही है कि इमरजेंसी पीरियड है, उससे लिंक कर लो कि तब बहुत बॉन्डेड लेबर हो रहा था, तो इसलिए दिस एक्ट वाज ब्रॉट, ठीक है। दैट वे यू कैन रिमेंबर दिस। नेक्स्ट है, द चाइल्ड लेबर वाज प्रोहिबिटेड इन हजार्डस एम्प्लॉयमेंट बाय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो है सही है। फिर जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑन December 10, अच्छा दिस इज स्लाइटली टफ। फिर यूएन चार्टर, हाँ यूएन चार्टर में भी मना करा है चाइल्ड लेबर, ठीक है। तो एक, ऑल ऑफ दीज विल बी करेक्ट, इसका देख लेते हैं क्या है। ऑन December 10, 1996, in the case of MC Mehta versus State of Tamil Nadu, the Supreme Court held that employment of children below age of 14 years into hazardous child labor is unconstitutional and hence they prohibited it, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, fill in the blanks. Dash without duties are like men without shadows. अच्छा ये वो है, कोर्ट बेस्ड क्वेश्चन है, ये इतना पूछते नहीं है यूपीएससी में, बट इसका रहेगा, if someone is a political science student they'll be knowing this, the answer for this will be rights without duties are like men without shadows, ठीक है। आंसर विल बी बी, है ना। इसको वैसे मैं हाईलाइट, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बट कर सकते हैं याद, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन राइट्स एंड ड्यूटीज, ठीक है। राइट्स और ड्यूटीज के बीच में रिलेशनशिप, राइट्स आर कोरिलेटिव विद ड्यूटीज, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, देखो नहीं नहीं रुको, कोरिलेटिव। नेक्स्ट क्या दिया है, राइट्स आर पर्सनल एंड हेंस इंडिपेंडेंट ऑफ सोसाइटीज एंड ड्यूटीज,
नहीं, ड्यूटीज आर पर्सनल एंड हेंस इंडिपेंडेंट, ये गलत हो गया, ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग. देन राइट्स नॉट ड्यूटीज आर important for the advancement of the personality of the citizen. This is again, rights not duties are important for the advancement. ऐसा तो नहीं है, both rights as well as duties are important. ठीक है, so again this statement will also be wrong. Then duties not rights are important for the stability of the state. Again this is also not correct. ठीक है, so the most correct one over here is option A. ठीक है, सो दे बोथ आर को रिलेटिव, है ना. को रिलेटिव का मैं एग्जैक्ट मीनिंग बताती हूँ आपको. कोरिलेटिव, कोरिलेटिव मतलब कि वही कोरिलेशन है दोनों के बीच में, दे आर सिमिलर इन ओरिजिन. ठीक है, कोरिलेटिव का मतलब वो हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट. राइट्स आर क्लेम्स ऑफ द स्टेट अगेंस्ट सिटीजन्स. क्लेम्स ऑफ द स्टेट अगेंस्ट, ये गलत है, कुछ भी लिखा है ना, दिस इज रॉन्ग. देन राइट्स आर privileges which are incorporated in the constitution of a state. privileges तो नहीं है, they are basically limitations on the power of the government. ठीक है, rights or claims of the citizens against the state, this is correct. ठीक है, फिर rights are privileges of a few citizens against many, that is also incorrect. So answer will be option C. नेक्स्ट है द कंसेप्ट ऑफ राइट टू सर्विस originated in, पता नहीं, ये मेरे को भी नहीं पता. इट द आंसर गिवन हियर इज ग्रेट ब्रिटेन. ठीक है, सो राइट टू सर्विस इज समथिंग विच हैज़ ओरिजिनेटेड इन यूके. तो आप ऐसे लर्न कर लेना इन केस इट इज आस्क्ड सम टाइम. ठीक है, बाकी इतना डिटेल इतना आई डू नॉट थिंक इट इज़ इम्पोर्टेंट. बट हाँ, ये याद रखना कि मध्य प्रदेश इज़ द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू इम्प्लीमेंट राइट टू सर्विसेज एक्ट ऑन. अच्छा, दिस इज़ एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट. ठीक है, एंड बिहार इज़ द सेकेंड स्टेट टू इम्प्लीमेंट सच अ लॉ ऑन 15 अगस्त 2011. ठीक है, सो ट्राई टू रिमेंबर दिस प्रॉपरली. क्या है, MP इज़ द फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट द राइट टू सर्विसेज एक्ट ऑफ, जो भी राइट टू सर्विसेज एक्ट ऑन 25 September 2010, एंड बिहार इज़ द सेकेंड स्टेट. ठीक है, और यहाँ ये पूरा ही पढ़ ही लेते हैं, इम्पोर्टेंट है. द कंसेप्ट ऑफ राइट टू सर्विस originated in Great Britain. So, right to service refers to laws which guarantee time-bound delivery of services for various public services rendered by the government to the citizens. ठीक है, मतलब कि राइट टू सर्विस जैसे सिटीजन चार्टर है ना, वैसा कुछ है सिस्टम इसका भी. सिटीजन चार्टर में भी देर आर सर्टन प्रोमिसेस विच आर बीइंग मेड कि हम ऐसा ऐसा सर्विस प्रोवाइड करेंगे. सिमिलर है राइट टू सर्विस. ठीक है, now the right of citizens for time bound delivery of goods and services and redressal of grievances bill 2011 was an attempt to start such a law in India. ठीक है, but it was not passed. It was only in Madhya Pradesh. Madhya Pradesh was the first state which had passed a right to services act in 2010. ठीक है, फिर बिहार became the second state in 2011 और nationally भी एक ट्राई करा था पास करने का, बट इट वॉज नॉट पास्ड. ठीक है, सो दिस इज क्वाइट इम्पॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू मी. नेक्स्ट देखते हैं. द एम ऑफ सिटीजन्स चार्टर इज नॉट क्वालिटी एंड टाइम फ्रेम सर्विस डिलीवरी. दिस इज करेक्ट, इट इज़, है ना, तो हमें नॉट बताना है. फिर सिटीजन फ्रेंडली गवर्नेंस भी कराता है, अकाउंटेबल गवर्नमेंट भी है, टू क्रिएट इफेक्टिव हियरिंग सिस्टम ऑफ पब्लिक डिमांड्स. तो ऐसा कुछ सिस्टम नहीं है. ठीक है, सिटीजन चार्टर इज़ जस्ट अ डिक्लेरेशन कि क्या क्या हम लोग प्रोवाइड करेंगे आपको. ठीक है, सो इट इज़ नॉट अ हियरिंग सिस्टम और समथिंग लाइक दैट. ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम ऐसा कुछ नहीं है. इट इज़ जस्ट अ, मतलब लिस्ट ऑफ promises which are being done to the citizen. ठीक है, made to the citizen. So answer will be option D. ठीक है, so we have completed fundamental rights. उसके सारे questions भी कर लिए हमने. ठीक है.